Hello everybody. Welcome to the Rustology Show. Today is this episode is the seventh episode of the Rustology Show, and the response that I've been getting from the episodes is decent enough, and I would like to thank all of you for the response that I've been getting. Moving on to today's episode, today we have our guest as Krishna Mehra, and Mr. Krishna Mehra is someone. First of all, he's an intellectual. He's a thinker. He has interesting perspectives on Indian psychology. He has worked in clinical settings where he has, I would say, had clients from the rural areas of India. He has seen how how these people from rural areas, they have their own language, own vocabulary of expressing their emotions, thoughts. It's interesting to see what kind of problem he's tapping into the mental health industry, because he is basically emphasizing on that Western perspective is definitely something which is good and should be welcomed in India, but we should also focus on the Indian psychology perspective, because that's something that can work in India. He thinks that in order to, I would say, interact with the Indian clients, we need to understand the ground problems of these rural areas, of these people, and it's interesting the problem he's tapping into. Well, Krishna Mehra is also someone who has worked as a guest lecturer, is working as a guest lecturer in NSUT, and he's a clinical psychologist, so he has a lot of experience in the field. He's great. He's doing great work. Second thing is that we have discussed in this episode about Indian psychology, about psychological constructs of Indian psychology. We have talked about suffering here, which took a little bit of a philosophical standpoint, I would say. In this episode, we have discussed some things which could make you rethink about a lot of things that you already think. So enjoy the episode, go out on a walk, have a cup of coffee, have a cup of tea, maybe work out, and put this in your ears and enjoy the episode. Thank you so much. बात करना थेरेपी फर्क क्या है? व्हाट डू यू थिंक? फ़र्क ये है, बात करना तो आप किससे भी बात कर सकते हैं, हम बचपन से बात ही करते हुए आ रहे हैं। थेरेपी इज़ एन इंटरवेंशनल मोडालिटी, कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपको उस प्रॉब्लम को या क्लिनिकल स्टेट को सब क्लिनिकल या फिर नॉन क्लिनिकल पोजीशन में लाना है। सो इट इज़ अ जर्नी। एक थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट या पेशेंट ट्रैवल करते हैं विद प्री डिफाइंड गोल्स, standardized measures, scientific, techniques, validated techniques. So, बात करना, मैं और तुम भी बात कर लें, बट हो सकता है कि that will not help. Is therapy a structured conversation? Not necessarily. Therapy can be very raw at times. आपका एक एजेंडा होता है, आप उस एजेंडा के अराउंड घूम सकते हो थेरेपी में, बट यू आर फ्री टू टॉक अबाउट एनीथिंग. हो सकता है पेशेंट आपके साथ पॉलिटिक्स डिस्कस करे, एंड दे डू, एंड यू हैव टू, एट टू सर्टेन एक्सटेंट यू हैव टू. हो सकता है कुछ गॉसिप करे, डिस्कस. गॉसिप, या दे डू, दे अब्यूज, पेशेंट टॉक्स अबाउट देयर ऑफिस पॉलिटिक्स, होम पॉलिटिक्स. सो आपको सुनना पड़ता है. आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, बट यू हैव टू अटेंड, यू हैव टू एक्नॉलेज. सो कॉन्वर्जेशन किसी भी एंगल में जा सकता है, बट एज अ थेरेपिस्ट इट इज़ योर स्किल कि आप उसको अपने एजेंडा या गोल की तरफ लाएं. So that is a skill. जब मैंने थेरेपी करी थी, मैं लेता रहा था कॉन्स्टेंटली. You were the client. हाँ, okay, ऑफ कोर्स. तो मतलब जब मैंने थेरेपी करी थी तो मैंने भी यही देखा था. सो आई थिंक दीज कॉन्वर्जेशंस दैट यू आर सेइंग कि दे वुड टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, दे वुड टॉक अबाउट रैंडम गॉसिप्स, दीज आर बेसिकली रैंट्स. would you call that rants? हो सकता है, हो नहीं भी सकता है. कई बार पेशेंट्स, देखो, जो परेशान है, जो फॉर एग्जांपल ओसीडी का पेशेंट है, कोई भी जिसको एक ऑब्सेशन है, सपोज फॉर एग्जांपल क्लीनलीनेस से, तो उसके जो थॉट है वो उसी डायमेंशन में जाएंगे कि सफाई नहीं होती आजकल, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही. सो इट गोज दैट, सो दे आर प्राइम्ड इन अ डायरेक्शन, क्योंकि वो थीमेटिकली उनको काफ़ी सिग्निफिकेंट लगता है उस बारे में बात करना. सो इट्स लाइक यू पिक अ प्रॉब्लम, लाइक यू are talking about your behavior at the core of it, and then behavior translates to the experiences that you have had, where you have had that behavior
इन एक्सपीरियंसेस, लाइक जैसे कि आपने बोला पॉलिटिक्स, जैसे उनके थॉट्स बेसिकली, जैसे अगर वो कह रहा है मेरे को ऑब्सेशन है लाइक यू नो विद क्लेanलीनेस और समथिंग लाइक दैट, एंड देन इट ट्रांसलेट्स टू द जस्टिफिकेशन कि भाई ये इसलिए नहीं हो रहा, ये उसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पॉलिटिक्स में भी यही है, बाहर जाओगे तो हर जगह यही मिलेगा. कह सकते हैं, कह सकते हैं. It translates to into a lot of things basically. That's what I'm saying. Would you call that ये सही क्योंकि है? बेसिक मॉडल भी तो यही है ना, बायोसाइकोसोशल मॉडल. You are not just the self you have created throughout your adult childhood. आप अपने साथ अपनी सोसाइटी कैरी करते हैं. You carry your relationships, you carry government, you carry your ecological conditions. So वो चीज़ आपको डिफाइन करती है कहीं ना कहीं. एक नॉर्थ इंडियन और एक साउथ इंडियन या कोई दूसरे स्टेट से है, सो उनके काफ़ी कॉग्निशंस काफ़ी अलग होंगे, उनकी भाषा अलग होगी. एंड साइकोलॉजी में एक बहुत कॉमन डिबेट है जो कि हम जनरल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, लैंग्वेज डिफाइंस कॉग्निशन, कॉग्निशन डिफाइंस लैंग्वेज. सो वहाँ पर कल्चर आता है फिर, जो कि आज हम बात भी करेंगे. जो हम बात भी करेंगे. When was the first time you encountered Indian psychology? Like, where you witnessed the context of it? ड्यूरिंग माई मास्टर्स, जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी एंटर किया, सो एक पूरा पेपर है कॉन्सेप्चुअल हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी. प्रोफेसर सुनीत वर्मा, ही इज़ पायनियर इन इंडियन साइकोलॉजी. उनका काफ़ी नाम है, बहुत सारे बुक्स हैं, पेपर्स हैं. और दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में स्पेशली एक स्पेशलाइजेशन भी हम रन करते हैं इंडियन साइकोलॉजी का मास्टर्स में. सो यू हैव क्लिनिकल, यू हैव नॉट काउंसलिंग, क्लिनिकल, ओबी, हेल्थ एंड कल्चर, सोशल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल एंड इंडियन साइकोलॉजी. देयर आर 6 स्पेशलाइजेशंस. तो इंडियन साइकोलॉजी सुनीत सर पढ़ाते हैं, और सुनीत सर ने हमें इंट्रोड्यूस किया इंडियन साइकोलॉजी से थ्रू कबीर. वी हैव रेड कबीर, वी हैव रेड बुल्ले शाह. तो उनकी पोइट्री, कबीर दोहे, कबीर के दोहे, कबीरदास, या कबीरदास. Yeah. कबीरदास, वी हैव रेड जैनिज्म, सूफिज्म, श्री अरबिंदो. तो वहाँ से वो चीज़ काफ़ी डिमिस्टिफाई हुई कि साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ वेस्टर्न नहीं है. साइकोलॉजी और मनोविज्ञान में बहुत अंतर है. Interesting. तो साइकोलॉजी इज नॉट मनोविज्ञान जो हम ट्रांसलेट करते हैं, What is क्योंकि the साइकोलॉजी इज सोल Mm. एंड देयर इज नो वर्ड फॉर सोल इन हिंदी. आत्मा है एक डेरिवेटिव, बट मनोविज्ञान इज नॉट स्टडी ऑफ आत्मा, मन का विज्ञान. सो मन कहाँ है, हाउ डू यू डिफाइन मन. सो ये एक चीज़ हुई. प्लस ड्यूरिंग मास्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर में ही एक और पेपर था सोशल साइकोलॉजी का, जहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस कराया गया सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म से, कि हाउ वी क्रिएट आवर रियलिटीज, हाउ वी कॉन्स्ट्रक्ट आवर रियलिटीज, हाउ कल्चर, लैंग्वेज, पावर, पॉलिटिक्स, सेंस ऑफ एजेंसी, एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी. शायद तुम्हारे लिए एक चीज़ अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, वी कैन को एग्जिस्ट. Subjectivity. सो देयर वाज उन्होंने, प्रोफेसर ने कहा कि डिफरेंस होता है सत्य और तथ्य में, ट्रुथ एंड रियलिटी. Truth and reality. रियलिटी जो सत्य है वो तथ्य होना हो. Truth क्या है? ट्रुथ, यू टेल मी व्हाट इज ट्रुथ. Something which is factual in nature, maybe. Mm. Something कह which सकते हैं. is factual, something which is visible, maybe. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, क्या ये ट्रुथ है या फैक्ट है? It's a fact. बट क्या सनराइज होता है? Yeah, you said sun rises from the east, and क्या sunrise होता है या नहीं होता? नहीं That's होता है ना, बिकॉज वी रोटेट, अर्थ रोटेट्स, सन नेवर राइजेस, सन इज देयर. सो दिस इज हाउ so रियलिटी. we are moving. So that's like a perceptual basis ना, मतलब वो perception की हाँ, बात है. परसेप्शन तो है, Perception, for sure. बट वो इस तरीके से हमारी रियलिटीज में है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, Sure. और सन के अराउंड ही हमारा लाइफस्टाइल है. 24 आवर साइकिल, आर बिहेवियर, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए. सो दीज आर प्रिस्क्रिप्शंस वी हैव डिसाइडेड फ्रॉम दिस वन फैक्ट कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट और सूर्योदय से पहले उठना है. सो इस तरीके से रियलिटीज कॉन्स्ट्रक्ट होती है. जैसे आपने कहा ये फैक्ट है, बट इट इज नॉट द फैक्ट दैट सन राइजेस. सो इसे बहुत सारे टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज कहते हैं. You know what? So, जैसा you mentioned a lot of Indian scriptures अभी, Jainism and so on and so forth, right? So, basically Indian psychology में we are reading mythologies. Is that okay? Is that a right? No, that's not a right way to. necessarily.
not necessarily. मतलब these are Indian scriptures, these are mythologies. I Not mean, necessarily mythologies. कह सकते भी हैं और कह नहीं भी सकते. इंडियन साइकोलॉजी सिर्फ माइथोलॉजी से रिलेट नहीं करता है. इट डील्स विद द लोकल रियलिटीज ऑफ इंडियन पीपल, इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम्स, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स. हो सकता है वो रिलीजियस ना हो. हाँ मतलब mythology and religion तो is different, that I know, that distinction I know. When I say for me what is a mythology, it's a story, ठीक है, it's a story. And now we read, okay, if I मतलब मैं अगर mythologies ना बोले, मैं scriptures ही बोल देता हूँ. हमने ये स्क्रिप्चर्स पढ़ी हैं एंड इसके बेसिस पे ही हमने अपना गॉड का भी परसेप्शन बनाया है, राइट? एंड सो आई वांट टू आस्क यू, हाउ इज साइकोलॉजी, बिकॉज आई वांट टू गो इन डेप्थ, ठीक है, कि साइकोलॉजी रिलेटेड कैसे है विद दी स्क्रिप्चर्स. हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है इंडियन साइकोलॉजी में जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म? तो इंडियन साइकोलॉजी और देयर आर टर्म्स. एक होता है कल्चरल साइकोलॉजी, एक होता है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, एक होता है इंडियन साइकोलॉजी, एक होता है इंडिजिनस साइकोलॉजी. सो कल्चरल साइकोलॉजी सिंपली सेज कि कल्चर का क्या इम्पैक्ट आता है मेंटल हेल्थ या ह्यूमन बिहेवियर पर. क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजीज कल्चरल डिफरेंसेस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंस इंडिया में कैसा दिखता है बच्चों में और यूएस के बच्चों में कैसा दिखेगा, दैट अ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट विल स्टडी. इंडिजिनस साइकोलॉजी कहता है कि जो लोकल रियलिटीज़ हैं, लोकल एज इन जो उस रीजन की स्पेसिफिक रियलिटीज़ हैं या इश्यूज़ हैं, वो शेप करते हैं हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी को, ह्यूमन साइकी को. एंड इंडियन साइकोलॉजी इज टाइप ऑफ इंडिजिनस साइकोलॉजी जो इंडियन कल्चर के लिए है. इंडिजिनस साइकोलॉजी का जो मूवमेंट है वो आया था आफ्टर रियलाइजेशन कि जो मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न साइकोलॉजी है या जो साइकोलॉजी है वो यूरो अमेरिकन इन नेचर, वो हर जगह अप्लाई नहीं की जा सकती. जितनी भी थ्योरीज अभी तक बनी है या तो यूरोप में बनी है या यूएसए में बनी है. सो वी कांट इम्प्लाई दैट. तो उसको डीकॉलोनाइज करने के लिए, उसको और ज़्यादा कल्चरली अप्रोप्रिएट बनाने के लिए हर जगह इंडिजिनस साइकोलॉजी स्टार्ट हुई. देयर इज अफ्रीकन साइकोलॉजी, चाइनीज साइकोलॉजी, एंड सो इज इंडियन साइकोलॉजी. सो इंडियन साइकोलॉजी इज अ टाइप ऑफ इंडिजिनस फ्रेमवर्क जिसमें हम यहाँ के लोकल रियलिटीज़, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं इंडियन स्क्रिप्चर्स. अगर हम कहें जो इंडिया में कभी साइकोलॉजी या मनोविज्ञान जैसी फील्ड ऑफ स्टडी नहीं रही, देयर वाज नो मनोविज्ञान, ऐसा डिसिप्लिन नहीं था. तो कैलकाटा में आया साइकोलॉजी, वेस्ट वाला ही पढ़ाया गया, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पढ़ाया गया, फिर जगह जगह फैला. बट ऐसा तो नहीं है कि हमने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कभी बात ही ना की हो. तो वो जो चीज़ थी वो एंशियंट टेक्स्ट में हमें दिखी कि भगवद गीता, जैनिज्म, सूफिज्म, श्री अरबिंदो ने फिर आकर बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बात कही. तो इंडियन जो स्क्रिप्चर्स है, नॉट ओनली रिलीजन, नॉट ओनली हिंदुइज्म, इवन सूफिज्म और इस्लाम, सिखिज्म, तो हर एक सिस्टम एक लाइफस्टाइल के बारे में, ह्यूमन साइकी के बारे में बात करता है. तो वहाँ से मूवमेंट आया कि इंडियन साइकोलॉजी को या जो स्क्रिप्चर्स हैं उससे हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, इंडियन लोगों के बारे में और जान सकते हैं और उनसे इंटरवेंशन निकाल कर उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा मतलब एप्लीकेबल रहे. शायद जैसे मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, आई वर्कड एट और ट्रेन एट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी KGMU. सो वहाँ पर ज़्यादातर लोग गांव के आते थे. दे विल नेवर अंडरस्टैंड द टर्म्स कॉग्निशन और इमोशन. सो जो ट्रांसलेशन है वो काफ़ी डिस्टॉर्ट हो जाता है. तो उनकी भाषा में उनके पास जा कर के साइकोलॉजिकली ट्रैवल करके उनके वो समझाना, दैट इज़ वेयर मनोविज्ञान लाइज, दैट इज़ वेयर कल्चर प्लेज इट्स रोल. तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई. तो मास्टर्स से देन क्लिनिकल प्रैक्टिस, एमफिल एट किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी. तो ये एक्सपीरियंसेस ने मुझे शेप किया एंड मैंने अपनी थीसिस भी उसमें की. सो धीरे धीरे चीज़ों के बारे में पढ़ा और जाना, which is how I developed interest in psychology. So when you mentioned अभी गीता, what do you think Gita has talked about basically which is related to a psyche of an individual? I have not read the whole Gita, but मैंने जितना भी पढ़ा है, जितना जाना है, so it is a kind of a module कि जैसे कहते भी हैं पॉप कल्चर में कि अगर आपके पास कोई भी जवाब है, उसको आपका सवाल है, उसका जवाब चाहिए आपको, तो आप गीता पढ़ सकते हैं. गीता में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं. जैसे
त्रिगुण जो है वो वहाँ से आया है, सत्व रजस तमस, आयुर्वेदा में भी दिखा हमें. Then there's a concept of asakti. Asakti is attachment, which is my research area also. So when we are attached to results or any person, any entity, we are suffering. So ऐसे कुछ concepts हैं जो कि help करते हैं. गीता में कृष्ण को जो कहा गया है, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट कहा गया है कि उन्होंने कैसे उनको हेल्प किया, पर्सपेक्टिव दिलाया और होपलेसनेस की स्टेट से बाहर निकाला और कॉन्फिडेंस उन्हें उनमें इनकलकेट किया. तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जो हम गीता से लेते हैं. दैट इज वन ऑफ द थिंग. When you mentioned abhi attachment, what do you think is attachment? Because जैसे I have done a podcast with someone, like with my own psychologist actually, and she defined attachment as something that if something is near you, surrounded by you, or basically close to you, you are bound to get attached by that object or that person. That is how she defined attachment. So when you say attachment to the action, basically to the results of your action, but before that, what is attachment according to you? What do you think about that? सो अटैचमेंट जितना भी वेस्ट में पढ़ाया गया है या वेस्टर्न थ्योरिस्ट ने बताया है, दैट इज रिलेटेड टू इंटरपर्सनल डोमेन्स. जो मैंने समझा जब मैं स्टडी कर रहा था अपनी आसक्ति के बारे में, जबकि इंडियन पर्सपेक्टिव या इंडियन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अटैचमेंट को एक अलग लेयर्स में लेकर जाता है कि अटैचमेंट सिर्फ एक इंसान से नहीं हो सकता, एक आउटकम से हो सकता है, एक सिचुएशन से हो सकता है, एक एक्सपीरियंस से हो सकता है. सो दिस इज द डिफरेंशिएशन और डिस्टिंक्शन मेड बाय वेस्टर्न एंड इंडियन पीपल. सो मैं भी कहीं ना कहीं इसमें विश्वास रखता हूँ कि अटैचमेंट इज नॉट जस्ट इंटरपर्सनल डोमेन. कई बार आप और भी चीज़ों से अटैच हो जाते हैं और ये क्लिनिकली ऐसे मैनिफेस्ट होता है. ऑल द वेस्ट ने भी इसको एक्नॉलेज किया है. होर्डिंग डिसऑर्डर, हम बहुत सारी चीज़ें होल्ड करते हैं कि स्कार्सिटी हुई, दिखा, पैनिक बाइंग, तो ये चीज़ रखनी है. कई बार कुछ लोगों को चीज़ें फेंकने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि काम आ जाए. सो दिस इज हाउ अटैचमेंट इज ट्रांजैक्टिंग इन डेली लाइफ्स. I have seen this so much क्योंकि मतलब मेरे घर पे भी कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं कि फेंकनी नहीं है. Because you're attached maybe because you're used to that. You're used to that कि हाँ अगर ये कप रखा हुआ है, अगर इस पे कुछ जंग लग गया, बट इट्स लाइक इतने सालों से है, ये उस टाइम पे तब मिला था जब हमारी शादी हुई थी, या फिर कुछ ऐसा कॉन्टेक्स्ट होता है. सो वी इंडियंस, एंड दैट्स समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड माई सेल्फ, दैट ऑफ कोर्स इंडियन सोसाइटी at its core is an emotional society, right? It's an emotional, it's a passionate society. It's like that, but I think passionate about relationships and positive feelings, or also negative इट ऑल्सो feelings. डिपेंड्स क्योंकि इंडियन मेन, अगर मैं बात करूँ मैस्कुलिनिटी और मेन के उसमें उनका इमोशनल एपेटाइट और इमोशनल एक्सप्रेशन, इट इज वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड. दे आर शेप्ड इन अ वे. It is restricted, but when you see men being in love, most of the men, because they don't have good regulation of how to regulate the relationships or the positive feelings or negative feelings, because they don't have good regulation, and so that leads to them feeling very intensely as well, काफी intensely. That's why you would see, maybe this is an assumption probably, but that's why you could see maybe जो कि दिल टूट गया and stuff like that, and it's a joke among a group of friends of like you know men के बीच में जोक होता है कि हाँ भाई इसका ब्रेकअप हो गया, उसका ब्रेकअप हो गया, एंड मजाक उड़ रहा होता है एक बंदे का कि भाई तेरा तो है ना. सो व्हाई इज दैट देयर एंड व्हाई इज द पर्सन सो अफेक्टेड? बिकॉज at the core of it, we are emotional. As Indians, we are emotional. We are an emotional society, and so that we feel that way. कह सकते हैं, बट इसके साथ जैसे आपने एग्जांपल दिया उसमें ग्रीफ की बात अगर तो ग्रीफ को हम सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन समझते हैं, बट ग्रीफ ऑल्सो रन्स इन अ लेयर ऑफ आइडेंटिटी. फॉर एग्जांपल एक फादर और एक डॉटर है, ओनली चाइल्ड, मतलब जो डॉटर, एंड द डॉटर डाइड. तो जो फादर है उनके अंदर एक सेंस ऑफ या आइडेंटिटी ऑफ फादर है जो उस डॉटर के साथ चली गई. ही विल नेवर बी फादर अगेन. तो ग्रीफ सिर्फ इमोशनल लेवल पर नहीं एक्सप्रेस होता है, आइडेंटिटी लेवल पर भी होता है. अब वो फादर नहीं. You are right. Because it's like I am not a, like जो मैं example दे रहा था of a boyfriend and stuff like that.
So for the person, it's like for the guy, it is like I am not anymore her boyfriend. Her boyfriend. I'm not that boyfriend anymore. I don't have that autonomy anymore. I don't have that responsibility anymore. I don't have that role anymore. आपसे आइडेंटिटी छीन ली गई, चाहे किसी भी रीजन से हुआ हो, चाहे सेपरेशन हो, लॉस हो, डेथ हो. Correct. नाउ यू आर, देयर इज अ वॉइड. Interesting. Yeah. सो वो सेल्फ लेवल पर भी एक्सप्रेस होता है. और जहाँ पर मैन और इमोशंस की बात हो रही है, तो यू आर राइट कि मजाक बनाया जाता है. मजाक क्यों बनाया जाता है? क्योंकि द बात नहीं कर आइडेंटिटी ऑफ मैन Hmm. इज नॉट रिलेटेड टू इमोशंस. मर्द को दर्द नहीं होता. Hmm. एक भाषा जो है वो बहुत अच्छे से साइकी को बताती है कि एक स्टेटमेंट होता है कि लड़कियों की तरह रो रहा है, या कोई भी बच्चा छोटा लड़का रोता है कि तू क्या लड़कियों की तरह रो रहा है. सो दिस इज हाउ हर तरीके से शेप किया जा रहा है बच्चे को बच्चों. बचपन से, कि ये इमोशन नहीं दिखाना है तुम्हें, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरे जेंडर के लिए है, दूसरे सेक्स के लिए. सो दिस इज हाउ सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म प्लेज इन, कल्चर प्लेज इन. What do you think? How is an identity actually formed, and how does Indian psychology, so to say, describes what an identity is? आइडेंटिटी को अगर ट्रांसलेट करें तो या तो सेल्फ होगा, Mm-hmm. अगर आइडेंटिटी पर्सनालिटी है तो व्यक्तित्व होगा. सो देयर आर डिफरेंट नोशंस रिगार्डिंग पर्सनालिटी, सेल्फ, आइडेंटिटी इन इंडियन थॉट. एक नोशन ये है कि जो एक्शन है, जो हम बिहेवियर जो हम करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे संस्कार, दैट इज हैबिट फॉर्म करता है, मेंटल इम्प्रिंट छोड़ देता है. सिमिलर टू बिहेवियरिज्म. बिहेवियरिज्म ने भी यही कहा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग होगी, जितना वो रिपीट होता रहेगा उतना स्ट्रेंथ होगा. वैसे ही इंडियन साइकोलॉजी ने अलग अलग टर्म्स के थ्रू कहा. सो दिस इज ऑल्सो अ गैप इन एकेडेमिया कि हम बिहेवियरिज्म तो बहुत पढ़ाते हैं, बट कभी इसको इंडियन साइकोलॉजी के टर्म्स में शायद ना पढ़ें. सो दिस इज हाउ इंडियन साइकोलॉजी ऑल्सो बिलीव्स कि actions shapes our identity and vice versa also. Identity shapes our actions. अलग अलग टर्म्स है उसके, संस्कार है, वासना है. there are a lot of steps and terms. It is very similar to behaviorism. What you said कि हमारे actions basically बताते हैं a lot of how our identity is, but sometimes the actions are not aligned with the thoughts, the perceptions, the way you think about life, basically the way you think about anything for that matter. And so that is, I think, in the Western concept, that is cognitive dissonance, I think. So when your actions do not align with your thoughts, perceptions, and so on and so forth. So I mean, why do you think that happens when the actions are not aligned with the thoughts, perceptions? And जैसे अभी इंडियन साइकोलॉजी ने बेसिकली डिफाइन करा, मतलब ये तो फिर आपने डिसमिस कर दिया ना थॉट्स, परसेप्शंस को. व्हेन यू से दैट योर एक्शंस Not define necessarily. I'm your not saying it कि ऐसे ही होता है. और भी स्कूल्स ऑफ थॉट है इंडियन साइकोलॉजी में ही जो अलग तरीके से बता. और ऐसा नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता. कॉन्टेक्स्ट तो है ही. इंडियन साइकोलॉजी अगर हम कहें तो ट्रू बायोसाइकोसोशल मॉडल को फॉलो करता है. इवन बायोसाइकोसोशल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल मॉडल. तो ये सारे डोमेन्स ऐड होते हैं इंडियन साइकोलॉजी में. सो हम सिर्फ ये कहना कि सिर्फ एक्शंस डिटरमाइन करते हैं हमारी आइडेंटिटी और सेल्फ को, दैट इज इनकम्प्लीट. रॉन्ग नहीं है बट इनकम्प्लीट है. और रही बात, क्या क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था अभी कि कैसे जो थॉट्स एंड परसेप्शंस है, जब ये अलाइन नहीं करते हैं विद द आइडेंटिटी, व्हाट कैन एन इंडिविजुअल डू अबाउट इट? हाँ, अब होता क्या है कि इंडियन साइकोलॉजी में इसको अविद्या कहते हैं, इग्नोरेंस. कि जब आपके जो थॉट्स या बिहेवियर्स हैं वो अलाइन नहीं हो रहे. सो इन इंडियन साइकोलॉजी अगर ईगो की बात कहें तो ईगो, अगर हम कहें वेस्टर्न में क्या होता है ईगो? ईगो इज आइडेंटिटी, सेल्फ. तो उसको जो The way you evaluate yourself, maybe, is that right? फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि इट्स अ बफर, कि जो आपके इम्पल्सेस को और आपके मोरालिटी को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा है या रियलिटी के साथ बैलेंस कर रहा है. बट ईगो इंडियन साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है. देयर इज अ टर्म कॉल्ड अहंकार, आईनेस. इट इज नॉट अ बैड थिंग, बट वो बैड तब बनता है जब आई इज फिक्सेटेड ऑन सर्टेन थिंग. आई एम माई थॉट, आई एम माई बॉडी,
आई एम माई सक्सेस, आई एम माई फेलियर। सो वो जो डिस्टेंस है आई और उस चीज़ में, वो कम होता है तब सफरिंग आती है। मैं सिर्फ मेरा सक्सेस हूँ, और किसी दिन अगर वो सक्सेस चला जाए, जिस भी टर्म्स में आप उन्हें डिफाइन करते हैं, अगर वो चीज़ हट जाए, देन यू विल बी डिस्टर्ब। दैट इज अविद्या और इग्नोरेंस। और इस चीज़ के लिए साक्षी भाव एक कॉन्सेप्ट आता है इंडियन साइकोलॉजी में, कि विटनेस वाली एक स्टेट, साक्षी इज विटनेस एंड भाव इज स्टेट। तो you should be witnessing your thoughts as they're coming and going, your sensations coming and going. It is very similar to mindfulness. कि मैं सिर्फ देख रहा हूँ और आ रही हैं चीजें और जा रही हैं, And I'm not doing anything to them. I'm not touching it. I'm not कर भी acting सकते out हैं, anything. बट एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। हम विटनेस कर रहे हैं अपने थॉट्स को, कि एंगर इज अराइजिंग इन माई माइंड रादर देन आई एम एंग्री। How does that look like practically, if you can tell? थेरेपी में इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं, कि ये मेरे साथ हो रहा है rather than आई एम फीलिंग दिस। तो ये ऑलरेडी है। माइंडफुलनेस जो बुद्धिस्ट साइकोलॉजी से आया है, बुद्धिज्म से आया है, वो भी कहीं ना कहीं साक्षी भाव को और ज़्यादा रीइंफोर्स करता है, कि वी हैव टू बी विटनेस ऑफ आवर थॉट्स, सेंसेशंस एंड फीलिंग्स। और उससे वो डिस्टेंस कम होगा, तो कहीं ना कहीं विल बी रिलैक्स्ड। This distance, does this puts an emphasis on detachment? डिटैचमेंट इज वैराग्य, आई बिलीव। डिटैचमेंट नहीं है, मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। माइंडफुलनेस भी तो यही कहता है कि आपको बस ऑब्जर्व करना है आपकी बॉडीली सेंसेशंस, आपके आउटसाइड, आपके आसपास। ये पंखा चल रहा है तो मुझे उसकी भी आवाज़ आ रही है, यहाँ पर लोग बैठे हैं, मुझे पता है, अवेयरनेस है। और अगर मुझे रिएक्ट भी करना है तो मुझे उसकी भी अवेयरनेस है। तो वहाँ पर ये नहीं कि हमें कंट्रोल करना है, ये कंट्रोल नहीं करना है, कंट्रोल की बात ही नहीं। बट दिस अवेयरनेस विल गिव यू मोर क्लैरिटी कि क्या हो रहा है। So I've talked about this even earlier of my episodes, that people get aware, they are aware about it, about their surroundings, about the sufferings, about whatever they are going through. But it doesn't translate to execution. And that is the battle that most of the people are battling with. That they know, see, because I believe so that problems, because now the world we are living in, because इतनी ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, साइकोलॉजी, प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ एंड बहुत सारी चीज़ें, एंड इवन नाउ द ओल्डर जनरेशन यूजिंग सोशल मीडिया, एंड सो दे आर ऑल्सो गेटिंग एक्सपोज टू all of these constructs of psychology. So there is a bit of an awareness about things, but there is no execution. For instance, my parents know that they have to take care of their health, of their physical health, of their mental health, but of course they're not doing anything about it, because there is a battle that is there. What can you do about that? So you are highlighting about the gap between planning and execution. In short, अगर हम थेरेप्यूटिक स्पेसेस में कहें तो लोग आते ही इसलिए कि शायद अवेयरनेस या इंसाइट हो कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजी के टर्म्स में बोले तो इंसाइट, कई लोगों को इंसाइट ही नहीं होता प्रॉब्लम क्या है, हाँ. या कंप्लीट डिनायल होता है। कई लोग आते हैं कि हाँ पता है दिक्कत है, और पता है कि कुछ करने से दिक्कत जा सकती है, इंटेलेक्चुअल या इमोशनल इंसाइट अगर हम कहें तो, बट वो फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। तब एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल यू हैव टू devise an intervention plan. That is a task of a clinical psychologist or a practitioner sitting there. अगर वो कर पाते तो शायद वो आपके पास नहीं आते, या अगर वो सही से नहीं कर पा रहे होते तो भी शायद दिक्कत नहीं होती। एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। Sure. कई बार ये होता है कि हम कर ही नहीं पा रहे हैं, Sure. इसलिए पेशेंट आता है। और कई बार हर पेशेंट को आप हेल्प नहीं कर सकते, सो एटलीस्ट वो ट्राई करना शुरू कर दे, और आपको पता है वो 3 सेशंस के बाद आपके पास नहीं आएगा। तो आपके लिए क्या एक टोटल रिकवरी प्रायोरिटी होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट वो ट्रायल करना शुरू कर दे, एंड यू आर वेरी अवेयर दैट आफ्टर 3 सेशंस वो शायद ना आए, तो एटलीस्ट उन्हें कुछ हद तक एबल्ड फील कराना अपनी लाइफ में इज द टास्क। करेक्ट. व्हेन मतलब जब इंडियन साइकोलॉजी आई गेस इस बारे में बात करती है अबाउट दिस अवेयरनेस एंड एग्जीक्यूशन थिंग, गीता में देयर हैव बीन लाइक कोटेड लाइंस वेयर कृष्णा जी हैज सेड दिस, दैट you are a warrior
to Arjun, you're a warrior. You're supposed to do this. It is your responsibility. It is your role as a warrior that you have to do it. Right? That is a motivational statement, I could say that. But that doesn't happen with people. Even if they know that in fact, sometimes it puts them in a more stressed position. कि okay, it is my responsibility. See, so many men, इसीलिए तो है men को भी दिक्कत होती है, जो भी problems हैं, sufferings हैं उनकी, because they have said this to themselves. I am a father. I am supposed to do it. I have to make money regardless of whatever I feel about my job. I have to do it. It is my responsibility. So Gita here talks about responsibility. Karma. आपका धर्म है. Dharma is the. So what do you have to say about that? Because it puts an individual in a stressed state. भगवत गीता में एक और भी लाइन है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो. So that is also a liberating statement कि मुझे करना है. बट जहाँ पर आप मेन और मैस्कुलिनिटी या फिर वुमेन के साथ भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसा कि परेशान हो जाती हैं जो भी रोल. I am a mother. I have to do this for my. I have to, maybe. You have to वाले स्टेटमेंट. You have to वाले ये जो मस्ट आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडियन साइकोलॉजी में ही कॉन्सेप्चुलाइज है. वेस्टर्न में भी, जैसे एल्बर्ट एलिस ने भी मस्टरबेशन कहा है कि मस्ट वाले बहुत स्टेटमेंट होते हैं कि मुझे करना ही होगा. या एक प्रोवाइडर आइडेंटिटी. आई हैव ऑल्सो रिसर्च इन मैस्कुलिनिटी एंड आई इंटरव्यूड मेनी मेन. तो मुझे घर चलाना है, मुझे घर पर चीजें देनी है, पैसा देना है, प्रोवाइडर मुझे ही देना है. जो ही है वहां पर दिक्कत है. ऐसे ही वुमेन के साथ दिक्कत है क्योंकि मैं एक माँ हूँ. एक माँ ऐसी कैसे हो सकती है? सो देयर इज अ रोल ओवरलोड. एक माँ अपने बच्चे को डांट कैसे सकती है? मैं तो प्यार करती हूँ, मुझे प्यार करना है. समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा? अगर मेरा बच्चा बिगड़ गया तो समाज क्या कहेगा? माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया. See, we come back to that time. We come back to the identity part. मैं माँ हूँ, मैं father हूँ. So essentially what we are looking at here is that most of the sufferings are because of the roles that we have assigned to ourselves. रोल ओवरलोड इसे कहते हैं. और एक और टर्म होता है कि अगर मैं डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है बट हाँ एसेंशियलिज्म, कि एक माँ है तो वो ऐसी ही होगी, उसको करना ही है. या एक पिता है या बेटा है तो उसको फाइनेंसेस में हेल्प करनी ही है. हो सकता है उसकी कोई और विश हो सकता है वो और पढ़ना चाहता, बट एक सर्टेन एज कैप लगा दिया कि 22-23 तक तो यू हैव टू, और 25 तक तो यू हैव टू शादी करनी है, बच्चे करने हैं, आगे सेटल होना. सो कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म भी सोशल कल्चर कह लो ना, मतलब एक तरीके से हमारे जो इंडियन कल्चर है उसमें यही सब बेसिकली बांटा जा रहा है, पास ऑन करा जा रहा है. जनरेशन Z एंड जनरेशन अल्फा आर बिट डिफरेंट. जो अब मिलेनियल्स जो पेरेंट्स बन रहे हैं, दे हैव वेरी डिस्टिंक्ट category of fathering or mothering. They are way too different from boomers. What have you observed, like the distinction? Okay, so they are more aware about nuances. They are more aware through social media आसपास, क्योंकि अब डायलॉग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक्सेस बहुत ज़्यादा है. पहले एक्सेस कम था तो सिर्फ एक तरह का नैरेटिव ही फ्लो होता था कि डॉक्टर है तो वो सक्सेसफुल हो गया, IAS है, इंजीनियर. बट अब अलग अलग तरीके की रियलिटी सामने आ रही कि शायद इस चीज़ से भी एक आउटकम निकल सकता है या इस इमोशन के साथ भी इंसान फंक्शन कर सकता है. तो जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ नैरेटिव्स है उसने बहुत ज़्यादा चेंज किया है, और ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक भी हुई है इन टर्म्स ऑफ इंटीमेसी. जनरेशन पहले अरेंज मैरिजेस बहुत ज़्यादा होती थी. आई एम नॉट सेइंग कि गलत है, सही है, श्योर, बट होती थी. अब वो ट्रेंड धीरे धीरे कम हो रहा है. डेटिंग कल्चर बहुत बड़ा है. सो ये चीज़ें जनरेशन जो बूमर्स हैं वो समझ रहे हैं, या मिलेनियल्स जो हैं वो समझ रहे हैं, अब समझना शुरू किया है क्योंकि एक्सेस है. सो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सेस एंड द रेडीनेस टू चेंज. क्योंकि उन्होंने चेंज देखा है, हम तो अभी यहीं पैदा हुए हैं. दे हैव सीन द कॉन्ट्रास्ट
कि तब कैसा था अब कैसा है, तो उनके लिए कंपैरिजन जो आता है तो उससे वो अच्छी चीजें सीख रहे हैं मेरे हिसाब से। Hmm. जनरेशन जी एंड जनरेशन अल्फा बॉर्न इन दिस Hmm. ट्रेंड और दिस एरा, तो उनके लिए यही रियलिटी। जैसे जनरेशन जी है जो अब आई गेस 20 के अराउंड या 18-15 के अराउंड है, AI हैज टेकन, बट फॉर जनरेशन बीटा और अल्फा उनके लिए ये चीज रियलिटी है, ये तो शुरू से ही रही है। Hmm. सो दिस इज हाउ कल्चर Effects. एंड एरा और वहाँ की टेक्नोलॉजीज, गवर्नमेंट, दे ऑल interact and impact the psyche and behavior of individual and society. So this is a trend I have seen, a change I have seen. That is interesting. See, but here you said कि you talked about information, being exposed to a lot of information about parenting and psychology and mental health. What do you think ये जो information है? See, because this is something that I've heard so much that किसी चीज़ के बारे में अगर आपने ज़्यादा जान लिया तो वो भी कभी कभी problematic हो जाता है, right? So when now parents are aware so much about psychology, about mental health, अब वो इतने ज़्यादा aware हो चुके हैं, they don't know how to regulate through the They are also knowledge. vigilant, Hmm. vigilance बढ़ गई। Hmm. क्योंकि अब बहुत सारी चीजें हैं, तुम क्या बच्चा सही कर रहा है या गलत कर रहा है, कहीं गलत ना कर दे। सो कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो डर से भी आ रही है। There is a fear, definitely. फियर है क्योंकि Hmm. सिर्फ एक पॉजिटिव रियलिटीज नहीं है ना, नेगेटिव भी बहुत सारी चीजें हो रही है समाज में। और जो बैलेंस कर पा रहा है अपने, जो आपने रेगुलेशन की बात की, जो रेगुलेट कर पा रहा है वो अडेप्टिव पेरेंटिंग की तरफ जाना है। जो रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए शायद वो पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशनशिप थोड़ा सा फिर उसमें स्ट्रगल्स हो सकते हैं, Sure. क्योंकि द चाइल्ड इज लिविंग विद द रियलिटी जो अभी पॉपुलर है, नॉर्मल है, वो नॉर्मलाइज्ड है, वो स्कूल में जा रहा है वो वही देख रहा है। पहले तो बच्चे मतलब पेरेंट्स कंपेयर करते थे कि उसके बच्चे ने ये कर लिया, अब बच्चे भी कंपेयर कर रहे हैं कि उसके पापा ने तो नहीं बोला, उसकी मम्मी ने तो नहीं बोला। तो और जो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव है वो भी काफ़ी शिफ्ट हुआ है। जो बच्चा अब जो 12 साल का बच्चा और पिछली जनरेशन में 12 साल के बच्चे के कॉग्निशन में काफ़ी बहुत डिफरेंस है। फर्क है, बहुत फर्क है. सो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग, अ डेवलपमेंटल शिफ्ट इंटेलिजेंस में, कॉग्निशन में, सोशल इंटेलिजेंस में, That's इमोशनल इंटेलिजेंस में। And I think so, I believe so, the concept of web series as well. Because most of, या तो मेरी एज कह लो या आपकी भी एज, और एकदम जब छोटे भी हैं, दे आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ वेब सीरीज, एंड उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन रेगुलेशन है नहीं ना कि क्या देखना है. सो इट्स अबाउट, सो हियर द सिनेमा plays a role about here, the documentary cinema also plays a role about it. चेंज आवर एक्सपेक्टेशंस, Expectations. क्योंकि एक तरह का जब आप नैरेटिव आप फ्लो करते हो तो अगर वो रिपीटेड है तो वो नॉर्मल लगने लगता है कि ये तो हो रहा है, शायद सबके साथ हो रहा है, यहाँ पे भी दिखाया है, उसमें भी दिखाया है, इसमें भी दिखाया है, तो ये नॉर्मल है और ये मुझे भी करना चाहिए, और मैं नहीं करूँगी तो मैं नॉर्मल नहीं रहूँगी या मैं पॉपुलर इसको वो कहते हैं conformity. Is this conformity? नेसेसरली कॉन्फॉर्मिटी बट फियर ऑफ मिसिंग आउट Fear of missing out. कह सकते हैं, Relatability. Belongingness. बिलोंगिंगनेस, क्योंकि अब डिजिटल स्पेसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो, Sure. बच्चा अपने घर से ज़्यादा अपने उस सोशल प्लेटफॉर्म पर है, Mm. दे आर मोर वोकल देयर। घर पर शायद वो किसी से बात भी ना करे, हो सकता है अपनी सोसाइटी में, कॉलोनी में किसी से बात ना करे। See, but it's upsetting because they are chasing similarity, familiarity. See, why the child is on the internet more? Because what's the internet? What's the algorithm here? The algorithm sells you relatability, similarity, familiarity, right? And so the child feels good about it. And उसको लगता है कि हाँ, this is my place. समटाइम्स अ सेफ स्पेस, Safe space. So the safe space is determined by all of these things. That it's a safe, it's a relatability from ये सारी चीजें हैं, right? And so घर पर जब पेरेंट्स हैं वहाँ पर relatability of course नहीं है, because it's a different mind. रिलेटेबिलिटी एक अलग लाइन ऑफ आर्गुमेंट है, हो सकता है वो घर उनके लिए सेफ स्पेस ना हो। हाँ, सी वो अब वो तो सर वही बात है, दैट्स अ
that's a clinician in you, and I get it कि ये क्यों हो रहा है, because of course you're basically pointing out the uncomfortable situations there probably in the abusive environment. But अगर मैं abusive environment को हटा दूँ, when I'm talking about a normal household here, if I may say so. Normal household as in कि जहाँ पे there is no physical abuse, there is no mental abuse, the child is in a space where they get appreciated, they are like, they get the privileges, right? They get the privileges, and they get good experiences, they have good experiences in their life, which promotes their mental health, and they are in a positive state most of the time. Maybe this is a normal household, maybe could be a hypothetical household. And now what happens is the child is more on the internet, and there the child is seeking relatability, familiarity, and so अब आप detachment आ गई. But मैं बता रहा हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ इससे. They cannot manage differences in life further on, and most of the social world out there, even the relationship partner or romantic partner, most of the time you will encounter differences with them, opposite attract or whatever. And so these people who are chasing relatability, familiarity, and so on and so forth, they cannot manage the differences. And the relatability or familiarity is there because of the comfort. Safe space, comfort. यहाँ पर एक डीपर लेवल पर अगर हम कहें, हम आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, तो हो सकता है शायद डिफरेंट आइडेंटिटीज ट्रांजैक्ट होगी, क्योंकि घर पर तो आप एक लोनली चाइल्ड हैं, और डिजिटल स्पेसेस पर यू आर अ पॉपुलर किड आउट देयर. Sure. You have followers. Sure. You have content. You have views. You have likes. Those are And- point of validation. And even if not that, even if like you're not a celebrity or you're not a figure in the content space, but you मतलब मैंने देखा है, like even मैंने भी experience करा है, जब मैं भी like जब छोटा था whatever, जब 17 का था 16 का था, I had online friends, people had online friends at that time, and so that is also there, that I have a different role there. Yeah. क्योंकि ऑनलाइन स्पेसेस आपको एक कॉग्निशन या एक एक्सपेक्टेशन देती हैं कि आपको दिखना है, और दिखना है के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मैं क्या दिखाना चाहता हूँ या चाहती हूँ. जो मैं दिखाना चाहती हूँ क्या वो सही लगेगा, तो एक इवैल्यूएटिव स्पेस भी क्रिएट हो रहा है, और सही लगेगा तो मुझे लाइक्स मिलेंगे, मेरे दोस्त बनेंगे, तो एक इंटरपर्सनल डोमेन भी बन रहा है. So if you look at it, we talked about attachment. They are even attached to the possible future self. हाँ, बिकॉज वो मोटिवेशन देता है ना, वो तो हर तरीके से बात हो रही है, चाहे वो इंडियन या वेस्ट, कोई भी स्कूल ऑफ थॉट हो, कोई भी लाइन हो, हर कोई यही कह रहा है कि हमें अच्छा करना है. तो अच्छे की इमेज सबके पास है. कार्ल रॉजर्स ने भी आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ इसी तरीके से कहा कि आइडियल हमें पता है हम क्या कर सकते हैं, बट एक मोटिवेशन, एक कंस्ट्रक्टिव आउटलुक कि हमें वो बनना है और हम बन सकते हैं, तब तो ठीक है. बट बनना है बट बन नहीं सकते, देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. कि यहाँ पर आइडियल सेल्फ भी बहुत दूर हो सकता है. कि अगर मैं सोच के बैठ जाऊँ, कोई भी बच्चा बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख ले कि बाय 6 months आई विल डू दिस, हो सकता है पॉसिबल हो सकता है ना भी, हाइपोथेटिकली ना हो, तो ही विल बी डिस्ट्रेस्ड. और एट द एज ऑफ 13 और 14 आपके पास वो कॉग्निटिव डिफेंसेस या मैकेनिज्म नहीं है कि आप उसको रैशनलाइज कर पाओ कि शायद मेहनत कर लूँ. तो पियाजे भी कहता है ना कि वो जो हाइपोथेटिकल सोच है वो नहीं है उस बच्चे में, तो उसके लिए वो सेटबैक ही रहेगा. उसे समझाने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि वो उसके अंदर चल रहा है. सो इट्स अ ट्रांजैक्शन हैपनिंग विद इन साइकी. आप हो तो आप अपने आप को बहुत एडल्ट समझ रहे हो, या फिर बहुत एडल्ट नहीं तो बहुत समझदार समझ रहे हो कि ठीक है, आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यू आर कॉग्निटिवली अंडर डेवलप्ड टू हैंडल दैट फेलियर, टू हैंडल दैट mismatch. That happens इसीलिए when people are like, इसीलिए I think, so if we talk about people who are in IIT or so, मतलब जिनको suicide कर लेते हैं because of academic setbacks and academic failure, this happens because they are not cognitively, they are underdeveloped basically cognitively, they are not able You to. cannot say that they are underdeveloped. Hmm. जब मैं underdeveloped टर्म यूज कर रहा था, I was talking from a purely developmental perspective. Hmm. But a student
who is an IITian, who has developed a personality, a sense of self till then, वहाँ पर Yeah. अलग लेवल ऑफ डिफिकल्टीज then अलग फॉलो level. कर रही है. So वहाँ in पे the वो under developmental development. stage you were talking about. हाँ. See, you mentioned sufferings, right, and stuff like that. And I wrote something recently on suffering, just like ऐसे ही casually लिख दिया था मैंने, putting my mind to it, but I would just wrote it like that. Didn't have any purpose towards it. And I realized जब मैं लिख रहा था, I'd written some things and उसमें ना मैंने basically एक चीज़ कही, and I could be wrong, which is that I think suffering is a state of helplessness where you feel, most of the times when you say that you're suffering, you feel like that I cannot do anything about this situation, I have to just deal with it. So you're in the state of suffering, and so that's what I believe. And so what I said ki, since we are born in this world, we are in the state of suffering. Like even if a child is born into this world, and so the child is inside the womb, and inside Why the do you womb. think that? So I'm telling you, they are. See, I'm Yeah. telling you, the child is inside the womb. This is not a negative connotation to it. I will. मैं आपको बताता हूँ. So the child is inside the womb, and inside the womb the child is comfortable and whatever. वो बच्चा बाहर आता है, वो रोना शुरू करता है. वो रोना शुरू करता है बिकॉज वो अनफेमिलियर है अपने सराउंडिंग से. उसको नहीं पता कि ये कौन है, ये कौन है, वो कौन है. बड़ा होता है, ऐसे बहुत सारे अनफेमिलियर सिचुएशंस और लोगों से मिलता है. ठीक है. नाउ व्हाई डिड आई से दैट? सफरिंग, अब जहाँ पर ये स्टेट ऑफ सफरिंग है, सो इवन इफ जब बच्चा खेलता है, वो गिर जाता है, ठीक है, कई बार उस पर कोई हेल्प नहीं होती है, वो खुद अकेला है, तब भी एक स्टेट ऑफ सफरिंग है, मुझे खुद ही करना पड़ेगा. ठीक है, आप खुद ही करते रहते हो. ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं आपकी लाइफ में. एंड सो सफरिंग इज इम्पॉर्टेंट टू एन इंडिविजुअल because you learn from it, because then only you can develop in life, you can learn more things in life. Suffering here is something which is good. It's a part of life, it is the reality of life. It's a good thing that you are suffering, because then you can find your way out of it. We as human beings, we get frustrated when we don't have any autonomy over ourselves so many times, right? And so in the state of suffering, when you are navigating through suffering, basically you have an autonomy at that particular moment. I can only do it, I have to do it, and so you are the driver here riding the car, right? And so you learn a lot of things. And इसको मैं बहुत छोटे छोटे इंस्टेंसेस से भी मैं शायद से कनेक्ट कर सकता हूँ, कि जैसे कि if I pick someone who was malnourished at a point, didn't have a great sense of self or whatever, the person had to work their way through it independently. He had to, or she had to do it, right? They were in the state of suffering, and so they learned that, okay, this is giving me these drawbacks in my life, so I have to do these certain things in order to reach a greater self. So what do you think about all this, whatever I mentioned? Okay, so I have analyzed a lot of words in whatever you said. कि ये रियलिटी है, या वी आर बॉर्न इन द वर्ल्ड ऑफ सफरिंग. सो इस तरीके से हमें प्राइम किया गया है. वी आर नॉट बॉर्न इन अ वर्ल्ड ऑफ सफरिंग. हु सेज दिस इज वर्ल्ड ऑफ सफरिंग? ये कंस्ट्रक्टेड है, कहीं से आ रहा है. तो सफरिंग इज अ रॉन्ग वर्ड है. फेलियर्स हैं, हार्डशिप्स हैं, और सफरिंग एक साइकोलॉजिकल कॉनोटेशन देते हैं कि लेबलाइजेशन, लेबल भी कह सकते हैं, बट सफरिंग इज अ लॉन्ग टर्म थिंग. क्योंकि सफ़र कर रहा है और कोई परेशान है एज अ मोमेंटरली थिंग, एंड कोई सफ़र कर रहा है या कोई पीड़ित है इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग. सो हो सकता है हम लाइफ के चैलेंजेस इज द राइट वर्ड रादर देन सफरिंग, परेशान हो. और चैलेंजेस ज़रूरी भी हैं फॉर आर ग्रोथ, फॉर आर रेजिलियंस, फॉर आर कोपिंग एबिलिटीज़, ज़रूरी है. बट एक पर्सपेक्टिव ये रखना कि सफरिंग ही ज़रूरी है, दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक. ये कहीं ना कहीं प्राइम कर रहा है कि हम तो इसी वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर सफरिंग है, बट ऐसा नहीं है. शायद बच्चे को सिखाया जाए कि शुरू से कि इट इज़ नॉट अ वर्ल्ड ऑफ सफरिंग, इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रोथ, बट यू हैव टू सर्च फॉर इट, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. सो द एंटायर पर्सपेक्टिव चेंजेस.
तो किसी बच्चे को यही सिखाया जाएगा कि ये सफरिंग का वर्ल्ड है, यू हैव टू सफर एंड देन फाइंड योर मीनिंग, शायद वो परेशान हो जाए। बट इट्स ऑल्सो अबाउट द वे यू आर टीचिंग द चाइल्ड नो। इट्स लाइक अगर आप ऑफ कोर्स ये कह रहे हो कि नहीं ये सफरिंग ये तो ये दुनिया ऐसी ही है, इस दुनिया में ये होता ही है, तो बच्चा नेगेटिव पिक करेगा। अगर आप कहोगे कि सफरिंग इज अ गुड थिंग, लाइक दीज पर्टिकुलर टर्म्स दैट आई एम यूजिंग, इफ यू educate the child about suffering in this way that it's a part of life, it is okay. See, we come back to the time where we are like कि अपनाना बेसिकली एक्सेप्टेंस सिखा रहे हो आप बच्चे को व्हेन यू से दैट। क्या हो गया? कोई नहीं, these two cameras are working ना, it's okay. So आप ओके आप बच्चे को एक्सेप्टेंस सिखा रहे हो, राइट? एंड एक्सेप्टेंस सिखाना भी तो बहुत ज़रूरी है। सी आई एम सेइंग कि जब आप सफरिंग की बात, जब आपने बोला मोमेंटरली वाला, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। अ मोमेंटरी स्ट्रगल और चैलेंज फॉर दैट मैटर, सो that's an important distinction that you made, agreed on that. But if we talk about the long term things, for example uh, for example PCM कर ले, ठीक है, PCM कर ले, अभी अभी चला ले इसको तू, ठीक है, एंड देन उसके बाद तू लाइफ में एंजॉय कर सकता है। these statements that we have heard, कॉलेज कर ले फिर चिल कर लियो। नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट, सो यू आर सफरिंग ना, इसमें तो यू आर सफरिंग बेसिकली कि हाँ मुझे ये भी पास करना है, मुझे अब ये क्यों हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज जब आपको स्ट्रीम चूज करने का आपके पास टाइम आए, यू डिड नॉट हैव ऑटोनॉमी ओवर योर सेल्फ, योर पेरेंट्स डायरेक्टेड इट टूवर्ड्स यू। Now you are in the state of suffering because you didn't have autonomy. If you had autonomy, you could have escaped the suffering का जो पूरा थिंग है। इट इज नॉट नेसेसरली सफरिंग, हो सकता है किसी कोई बच्चा कोप भी कर जाए। तो मेरे हिसाब से जो शब्दावली है, वोकैबुलरी है, वो गलत है, गलत नहीं कहूँगा, बट हो सकता है किसी केस के लिए या किसी पर्सन के लिए अप्लाई ना, सब्जेक्टिविटी है। बिकॉज सफरिंग हैज अ वेरी लॉन्ग टर्म कॉनोटेशन। कोई सफर कर रहा है, आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि सफरिंग जरूरी है, आपको सफर करना पड़ेगा। इट्स अ पैराडॉक्स। श्योर करना तो पड़ेगा, तभी आप ग्रोथ कर पाओगे। बट इससे इसको एक नेसेसिटी की तरह ना देखते हुए एक इफ एंड बट के साथ देखना कि शायद हो सके तुम लाइफ में स्ट्रगल्स आए और तुम सफर भी करो, परेशान भी हो, तब घबराना नहीं है। तब आपके पास ये ऑप्शंस होंगे, नहीं है तो हमारे पास आओ, नहीं है तो हेल्प लो, दोस्तों से, प्रोफेशनल हेल्प, फैमिली। तो दिस इज अ राइट वे टू एडुकेट अ चाइल्ड। बट जब आप एक लॉन्ग टर्म प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं चाइल्ड को, आपने एक स्क्रिप्ट दे दी लाइफ की, एक 13-14 साल का बच्चा वो नहीं समझ पाएगा डिफरेंस, क्योंकि पॉप कल्चर में भी भाषा सफरिंग ऐसे यूज होता है, या हमारे आसपास भी ये नैरेटिव्स घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइम हो जाएगा कि ये तो होना ही है या ये तो करना ही होगा, एंड दैट रेडीनेस कैन बी अनसेटलिंग फॉर हिम। ही और शी कैन नॉट बी एक्साइटेड एनी मोर फॉर लाइफ। ऐसा हो सकता है और हो नहीं भी सकता, because there is a negative connotation to it, no? प्रिपेयर्डनेस इज अ गुड पॉइंट। आप बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं, बट उसमें आपकी शब्दावली क्या होगी, दैट विल चेंज द होल। Buddhism here talks about detachment from suffering, right? So what do you think about that? Detachment from the results. That is तो गीता, isn't it? Yeah, it is. That is गीता, isn't it? Yeah. बुद्धिज्म भी कहीं ना कहीं, बुद्धिज्म एक स्टेप आगे चला जाता है, बट हम पूरी तरह से डिटैच नहीं हो सकते, है ना, वही तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी का पार्ट है। Why do you think it is written like that then? Because there must be a reason to, but what do you think is the पॉसिबिलिटी है, और हम हो भी जाते हैं, बट एक मैकेनिज्म है। आपको कोई कह कर डिटैच नहीं करवा सकता। आप अपने एक्सपीरियंस से, आप अपनी चॉइस से, और डिटैच होना मतलब नो रिएक्शन एट ऑल, राइट? यही होता है ना। बट डिटैच होने के लिए भी तो आपको एक रिएक्शन देना पड़ेगा। मुझे उसे भूलना है,
मुझे इस चीज को भूलना है, यू आर कॉन्शियसली अवेयर कि मुझे इस चीज को भूलना, राइट? सो इट्स अगेन अ पैराडॉक्स. What is the difference between thinking about what is the but like in the process of detachment, what is the difference in forgetting and actually being detached? Is there any, is there a distinction? Because forgetting, I believe so, forgetting cannot happen. Forgetting is something that it doesn't unless you have a whatever disorder or whatever problem you have, right? But it is not a thing कि आप कोई चीज भूल जाओ. It doesn't happen like that. And in the Western, we have mentioned short-term, long-term memory, and so on and so forth. वो तो है, So- कॉग्निशन इज स्टिल देयर. हाँ. कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक्नॉलेज होता है और होना भी चाहिए. फॉरगेटिंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, डिटैचमेंट एक सोशल और इमोशनल रिस्पॉन्स है, राइट? Response है. रिस्पॉन्स या स्टेट State. या प्रोसेस भी कह सकते हैं. बट फॉरगेटिंग एक इवेंट है, या कॉग्निटिव टर्म्स में कहें कि मैं भूल गया, इट इज आउट ऑफ अवेयरनेस. बट जब वो डिटैचमेंट में आता है तो वो सोशल इमोशनल इम्प्रिंट्स के साथ आता है. आप किसी के साथ आपने 6-7 साल बिताए और वो चला जाए, आप उसे भूल नहीं सकते. आप डिटैच हो जाओगे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, वो आपकी मेमोरी में है अभी भी, कॉग्निटिवली इट इज स्टोर्ड, बट उसके साथ जो सोशल और इमोशनल और साइकोलॉजिकल या साइको सोशल एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपको तंग करेगा. अब उसको आप एक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, उसको अलग तरीके से रीस्टोरी कर सकते हैं, उसको अलग तरीके से देख सकते हैं ताकि आपके तक उसका इम्पैक्ट कम या एक अलग तरीके से पड़े. तो आप उसे भूल नहीं सकते, मेमोरी में हो. हाँ, है ना, मेमोरी में होगा. वो है ही नहीं कॉन्सेप्ट का, मतलब जो फॉरगेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मेमोरी में तो हमेशा रहेगा ना. द इवेंट्स वुड बी स्टिल देयर, यू कैन नॉट लाइक फॉरगेट देम, बट यू कैन बी, मे बी you can be detached from those events, like you एक can move intermediate on. टर्म आ सकता है अवेयरनेस. Awareness. हाँ. शायद आप भूले ना, लेकिन वो अवेयरनेस में आके तंग करे. वो आपकी मेमोरी किसी स्टोर में होगा अगर हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी के मॉडल्स में जाएं, बट जब आप उसे रिकॉल करें वो आपको पेन दे. जब आप उसको कॉन्शियस अवेयरनेस में लाए, वर्किंग मेमोरी में लाए, तब Working- वो आपको प्रॉब्लम देगा. एंड अगर आप डिटैच हो चुके हो उस इवेंट से तो वो आपको परेशान नहीं कर सकता, मे बी. हाँ, शायद आपको एक अलग तरीके का इमोशन दे, हाँ. शायद रेजिलियंस आ शायद जाए, नॉस्टैल्जिया दे, नॉस्टैल्जिया, रेजिलियंस. रेजिलियंस दे. शायद वो रिलेशनशिप या वो जो बॉन्ड था वो आपके लिए पेनफुल रहा, बट वंस यू विजिट बैक. अब होता क्या है इसमें, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी या इंडियन साइकोलॉजी, हम एज अ पर्सन ग्रो कर रहे हैं. वी आर ऑल स्टोरीज, वी हैव आवर स्टोरीज. आफ्टर 2 or 3 years of that particular incident, when we look back, we are restoring it. हम उसको अलग तरीके से देख रहे हैं, अलग तरीके से बता रहे हैं, अलग इमोशन आ रहा है. राइट, राइट, सो एज अ विजिटर वी हैव चेंज्ड. राइट. जिसने वो एक्सपीरियंस किया है और जो वो अब उसे रिकॉल कर रहा है या रिस्टोरी कर रहा है, वो दो अलग वर्जन्स हैं. वर्जन्स. और इसमें ग्रोथ का स्कोप आता है. जब आप उसको एक रेजिलियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि मैंने वो कर लिया था, तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब कि मैंने वो कर लिया, मैं उससे बाहर निकल आया, तो शायद मैं किसी और दिक्कत से भी बाहर आ सकता हूँ. सो इट गिव्स यू ग्रोथ, इट गिव्स यू रेजिलियंस, जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ भी कहते हैं. You mentioned story का ना, I think it is very important how people tell other people their own stories of their own life, their experiences. The way people articulate their experiences, I think it is very important. नैरेटिव साइकोलॉजी या नैरेटिव एनालिसिस अगर हम कहें तो यही कहते हैं कि वी ऑल आर स्टोरीज. अगर मुझे मेरे बारे में कुछ बताना हो, जब मैं बताऊंगा, तो वी ऑल आर स्टोरीज Story. एंड वी चेंज, वी इवॉल्व, वी ग्रो. Sure. सो उस तरीके से इमोशंस भी एलिसिट होते हैं. When you mentioned the awareness, can I say like that awareness is consciousness? No. No. There is a distinction. कॉन्शियसनेस के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस भी होता है. कोई सो रहा है तो वो भी एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, राइट? It's a state of conscious. हाँ, unconscious है वो. No, he's not unconscious. He is also conscious.
व्हेन यू रीड जनरल साइकोलॉजी या कोई भी ऐसी कॉग्निटिव साइकोलॉजी की किताब पढ़ो, तो ड्रीमिंग, देन मेडिटेशन, दे आर ऑल ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट? Okay. Consciousness is the awareness of being there, Present. not present. So consciousness भी अलग अलग तरीके से डिफाइन हुआ है वेस्ट और इंडियन थॉट में। वेस्ट में ब्रेन और हमारे दिमाग से कॉन्शियसनेस आ रहा है, क्योंकि ब्रेन वर्किंग है इसलिए हम कॉन्शियस हैं। बट इंडियन साइकोलॉजी हैज़ अ टोटल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि कॉन्शियसनेस है, फिर माइंड है, और फिर थॉट्स एंड इमोशंस है। कॉन्शियसनेस से हमारे इमोशंस एंड थॉट्स राइज हो रहे हैं, सो वे बैकवर्ड, फ्लो डिफरेंट Consciousness से emotions and thoughts आ रहे हैं, आ रहे हैं. एंड माइंड इज अ फिल्टर। Okay. जब माइंड या लेंस डिस्टॉर्ट होगा तो आपके थॉट्स और इमोशंस भी डिस्टॉर्ट होंगे, हाँ. बट कॉन्शियसनेस वहीं है। So mind, जब आपने बोला perception basically, is that your sensory, your senses, the way How you you perceive perceive. it, how you see things, So when the perception is distorted, and so your thoughts and emotions will also get distorted. we can say that। तो कॉन्शियसनेस जो है वो अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। तो देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मन इन इंडियन साइकोलॉजी की एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, और हम सब उसके ड्रॉप्स हैं, कि वहीं से हमारी अवेयरनेस आती है, वहीं से कॉन्शियसनेस आती है। सो दिस इज अ डिफरेंट स्टेट। Delve into that more if you can. सॉरी, Delve into that more if you can. Like, और इसके बारे में बताओ मेरे को. This. अबाउट ब्रह्मन। सो ब्रह्मन, जैसे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं यूंगियन साइकोलॉजी में, बट What is collective consciousness? मुझे नहीं Collect- पता है. ओके, मुझे पता नहीं है. कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करते हैं यूंगियन साइकोलॉजी। Okay. फ्रॉइड का अनकॉन्शियस वी ऑल आर अवेयर, हाँ. पर्सनल अनकॉन्शियस होता है। यूं फर्दर गए कि पर्सनल कॉन्शियस अनकॉन्शियस के साथ कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी होता है, कि कल्चरल, जिसमें हम आर्कीटाइप्स की बात करते थे कि एनिमा है, एनिमस है, और हीरो आर्कीटाइप है। वी हैव दोस प्रिमोडियल फिगर्स, Okay. जैसे या इमेजेस जो हमारे बिहेवियर को, इमोशन को प्राइम करता है। Preconceived notions. नॉट नेसेसरीली। Hmm. जैसे हमारे जो भगवान है, हाँ. we have never seen them, Sure. the images are carried Sure. forward, Carrying forward. these are archetypes। Okay. Right. कि Imagination. इमेजिनेशन कहेंगे, और अनकॉन्शियस में है वो चीज़। हम सबको पता है कि जैसे एनिमा या एनिमस का कॉन्सेप्ट है कि देयर इज फेमिनिन इन अ men also, feminine part in men also, Hmm. and vice versa animals की masculine part in female also। बट वो चीज़ हमने अपने इंडियन ट्रेडिशन में भी देखा है, अर्धनारीश्वर, शिव शक्ति, हाफ बॉडीज मेल एंड हाफ बॉडीज फीमेल। सो दीज आर आर्कीटाइप्स इन डिफरेंट कल्चर्स। हम यहाँ तो अनकॉन्शियस की बात कर रहे थे। कलेक्टिव कॉन्शियस या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ब्रह्मन है, हम सब उससे बने हैं, उसकी हम ड्रॉप है, आत्मन, हमारा जो सेल्फ है वो उससे आया है। सो ये ऐसे ट्रांसलेट होता है, इट्स अ मॉडल बेसिकली। दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड दिस इज हाउ वी फील कलेक्टेड टुगेदर। हमारे Unity. थॉट्स और इमोशंस जो हैं वो कलर होते हैं इन दैट वे। So, Jung basically had talked about I just uniformity. use the Jungian example just to make the comparison कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उन्होंने भी अनकॉन्शियस की बात की, कॉन्शियसनेस की बात नहीं की, बट उन्होंने कहा कुछ चीजें ऐसी हैं जो चलती आ रही हैं। हाँ. हमने कभी हनुमान को Culture नहीं देखा, का पार्ट है. हाँ. बट वी स्टिल हैव द इमेजेस। हाँ, हाँ, हमने हाँ. कभी राम को नहीं देखा, वी स्टिल हैव द इमेजेस। सो दीज आर गोइंग ऑन, और हम एक सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स उनके साथ जोड़ते हैं। जब हम कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल कृष्ण जैसा है, हाँ, मैं चंचल, समझ गया. हाँ. एस्क्रिप्शन, हाँ. तो वो चलते यार So, sure. Right. इन दैट वे। Right. So, you said the conscious. You said if a person is sleeping, they are also in the state of Yeah, consciousness. it is a state of consciousness। How? ये कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन यही होती है कि कॉन्शियसनेस ये नहीं कि बंदा जाग रहा है तभी वो कॉन्शियस कहलाएगा, राइट? इफ यू रीड द डेफिनेशंस आल्सो,
इन्हें हम ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं. कोई हिप्नोसिस में भी है, कोई सो रहा है, कोई ड्रीम कर रहा है. दीज आर टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस. इवन इंडियन साइकोलॉजी में भी कॉन्शियसनेस को कहें तो डिफाइन किया गया है तैत्तरीय उपनिषद में, जैसे जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, प्रज्ञ अवस्था, देन तुर्यावस्था. सो दीज आर लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस. ऐसा नहीं है कि जो सो रहा है वो कॉन्शियस नहीं रहे. सो दीज आर मॉडल्स एंड दीज आर वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स. कॉन्शियसनेस को पॉप कल्चर या पॉप साइकोलॉजी में या हमारे जो ले मैन लैंग्वेज है उसमें कोई सो रहा है तो वो अनकॉन्शियस. इट्स नॉट लाइक दैट. ये डिफरेंस है. There is a difference. You mentioned dreams, right? Freud here talks about that. Dreams are basically your unconscious, repressed feelings or memories or experiences. Do you believe in that? Do you I believe? do. अब वो कितना ट्रू है दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ड्रीम हमारे अनकॉन्शियस तक हमें पहुंचा सकता है. ड्रीम एनालिसिस टेक्निक, वेल वैलिडेटेड टेक्निक, बहुत लोग यूज करते हैं. Have you ever used it? नो, आई हैव नॉट. You have not. इंडिया में साइको एनालिसिस का ट्रेनिंग इज वेरी रेयर. Is that so? या इंडिया में साइको एनालिसिस में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं. लोग हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग, बट अगर आप कहें कि एमफिल डिग्रीज में आपको साइको एनालिसिस एज अ थेरेपी पढ़ाया जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल. नहीं पढ़ाया जाता. Why is that the case? I don't know about the objective answer, but what I believe is psychoanalysis has been again a Western concept. वही मुझे लग रहा था कि वेस्टर्न हो सकता है. Indian psychoanalysis is still there. हमारे यहाँ जब psychoanalysis आया था तो इंडियन साइकोएनालिटिकल सोसाइटी भी बनी थी. ऐसा नहीं कि साइकोएनालिटिकल हमारे लिए सही नहीं, और उसको अडेप्ट किया जाना चाहिए. इंडिजनाइजेशन होना चाहिए, जो हुआ भी है. There are several books on Indian psychoanalysis. Sudhir Kakkar wrote many books about Indian psyche, Indian mind, and Indian healing systems. तो हमारे यहाँ साइकी कैसा ऑपरेट करता है, इट हैज़ बीन वर्कड अपॉन. ट्रेनिंग ज़रूर नहीं है, क्योंकि लोग पहले से भी ट्रेन नहीं थे, तो उतना ह्यूमन पावर भी नहीं कोई आके ट्रेन करे. सो यूजुअली लोग ऑनलाइन तरीके से और अपनी रीडिंग्स के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू, दे डेवलप देयर स्किल्स इन साइको एनालिटिक interventions. Otherwise there is no formal training in India. बहुत सी organizations हैं, those are working around psychoanalysis and training part, but इतना नहीं famous नहीं. It's not that out there. Okay, but what do you believe, मतलब कि हमारे dreams कहाँ से आ रहे हैं? सिर्फ do you think it is just the unconscious, or do you think there is more to it? Unconscious तो है ही है, बट कई थ्योरीज अलग अलग तरीके से इसको फ्रेम करते हैं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो डे टू डे इंफॉर्मेशन है, वो स्लीप में कंसोलिडेट होती है. वो अलग तरीके से एक फॉर्म लेती है, मेमोरीज या इंफॉर्मेशन. तो जब वो प्रोसेस जब हो रहा होता है तो हम ड्रीम देखते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थ्योरी. सो आई बिलीव ड्रीम्स आर मटीरियल, बट अगर आप साइको एनालिटिक फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तभी. When you are in therapy session and you are following classical CBT format or DBT format, then dreams have no space. और usually इंडिया में mostly जो practitioners हैं वो trained CBT या cognitive revolution में ही trained रहते हैं, cognitive behavioral perspective में ही रहते हैं. तो this is a matter of practice and orientation. As a therapist, I am more inclined towards cultural and cognitive behavioral perspective, and therapists भी can be more inclined towards psychoanalytical perspective. तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी प्रैक्टिस रन करते हैं. पहले अम्बेडकर यूनिवर्सिटी था, तो they used to have this course in MPhil in psychoanalytical practice करके, तो वो ट्रेन करते थे. बट अब MPhil स्क्रैप हो गया, so उन्होंने ऐसा कोई कोर्स ही नहीं निकाला. So this is the difference. So, and is there any concept of unconscious in the Indian scriptures? Indian scriptures, I'm not really aware, या मैंने पढ़ा नहीं है इस बारे में. बट आर्कीटाइप लेवल पर तो हम चीज़ें डिस्कस करते हैं. जैसे अब कृष्ण है या राम है, उनको किसी ने देखा नहीं, और इन्हें हम मिथ्स भी नहीं कह सकते, क्योंकि लोग जो है वो मिथ इज अ वेरी, एक तरह से अगर हम इन्हें मिथ कहें, माइथोलॉजी कहें, तो लोग कहते हैं कि
इट कैन हर्ट देयर सेंटिमेंट्स कि ये हुआ था। हाँ अब थोड़ा सा इसमें रिलीजन एंटर कर दे तो कि ये तो हुआ था तो ये जो इमेजेस हैं ये चलती हुई आ रही है। एंड व्हेन यू सी द इमेजेस ऑफ राम दे आर वेल शेव्ड, दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं होता है, बट एट दैट टाइम ऐसा कुछ होता नहीं था कि वो शेव कर। शेव करो So, कहीं ना कहीं डिफरेंस है हमारे आर्किटाइप्स में, हमें एक परफेक्ट या क्लीन ऐसी चीज़ें चलती हुई आ रही एंड वी हैव नो प्रूफ। इवन गॉड की भी बात कहें, नॉट ओनली हिंदुइज्म, देयर इज नो प्रूफ कि वो एग्जिस्ट करता है एंड देयर इज नो प्रूफ कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। See, I think these Indian scriptures are there to provide meaning. Huh, Lifestyle. because meaning lifestyle, see, because we want meaning, like we always want meaning कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, we are curious, जो चल रहा है हमें जानना है कि ये हो क्यों रहा है, और मेरी लाइफ अगर ऐसी होगी तो मुझे अभी प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा क्या करना है कि ऐसी हो सके. And so these Indian scriptures, दे they प्रोवाइड द स्क्रिप्ट ऑफ टुवर्ड्स योर बिहेवियर कि ऐसा करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। so we are talking about outcomes, isn't that so? आउटकम्स एंड प्रोसेस कि मुझे ये पाथ फॉलो करना है, ये धर्म का पाथ है, मुझे अपना धर्म कर्तव्य पूरा करना है। सो दीज आर वोकैबुलरी दे यूज। इट इज मोर ऑफ अ प्रोसेस देन एन आउटकम। आउटकम हाँ कि मुझे फाइनली मोक्ष पाना है और परमात्मा से मिलना है, ये सब चीज़ें हैं, बट थ्रू आउट लाइफ दे विल फॉलो देयर ड्यूटी। और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वो स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। Morality. मोरालिटी, वन साइड इज मोरालिटी, बट डूज एंड डोंट्स ऑल्सो हाँ. कि कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। But the do's and don'ts aren't they determined by morality? मोरालिटी इज वन डायमेंशन, सही और गलत से मोरालिटी से नहीं डिफाइन होगा ना, और भी फैक्टर्स आ सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट आ सकता है, Context आ सकता है, हाँ. एबिलिटी टू डू दैट और नहीं, but I'm saying कि लोग करते हैं, like people define what's right and wrong on the basis of their sense of morality. And so morality is what is right and wrong. हाँ, कह सकते हैं, बट मोरालिटी जो है वो काफी डायनामिक है, Okay. Dynamic है. Okay. शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे लिए शायद वो डुएबल हो और वो मॉरली भी मैं जस्टिफाई कर दूँ, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्टिवली या किसी और के लिए मॉरली सही है बट मैं नहीं कर पा रहा, तो शायद मैं उसको कोप करने के लिए कहूँ कि दिस इज रॉन्ग। दिस इज हाउ वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फेलियर से, लैक ऑफ ट्रायल कि मैंने ट्राई नहीं किया, लैक ऑफ अटेम्प्ट। सो दिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑल्सो। Morality. Yes, morality and also lack of morality. Lack of morality. What do you think is the difference? And what? Lack of morality में क्या lack कर रहा है? आपके पास लेंस नहीं है, आप उसको सही गलत की दिशा से नहीं देख रहे हो, फिर आपको करना है या नहीं करना है, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया। Action focused हो, उसके पीछे का consequence पे नहीं. शायद कह सकते हैं। Possible consequence, possibilities. उससे क्या किसी को हानि होगी, नुकसान होगा, खुद को क्या नुकसान होगा, उसका उसके नहीं परे सोचते. हटके सिर्फ एक इम्पल्सिव एक्शन, या इम्पल्सिव नहीं भी एक थॉटफुल एक्शन कि आई कम फ्रॉम सो एंड सो फैमिली एंड मुझे एक सर्टेन करियर चूज करना है और मुझे करना है बस। सो इसमें कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं सोच रहा, इसमें मोरालिटी भी नहीं आएगा, लैक ऑफ मोरालिटी, ये करना है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद किसी और को इम्पैक्ट कर दें और खुद को भी इम्पैक्ट करें, तो उसके बारे में सोचना कि क्या वो सही होगा, गलत होगा, दिस इज Morality है. हाँ. Interesting. How does do you think morality? I think काफी लोग, I believe so, जितने भी लोग इंडिया में in the state of guilt होते हैं, right? They are in the state of guilt because somewhat in their life, or like somewhat in their life, their experiences, they have
not followed their moral principles, and so they are guilty of it. And also there is a fear of God. Do you believe so? कि in the state of guilt, the person is basically guilty because they have somewhat disobeyed their moral principles that they had formed, right? And that's why they are guilty about it. कह सकते हैं जो लोग एक स्क्रिप्चर को या एक आइडियोलॉजी को ही अपना आइडियल मानकर चलते हैं कि मुझे ऐसा करना था और मैं नहीं कर पाया, या मैं डिविएट हो गया, या मुझसे गलती से कुछ हो गया, so they will be guilty about it. It's more about how much they believe in that ideology. Belief systems. In any ideology, if we are talking about any particular religion, जब आपने गॉड की बात की, तो if they are coming from any faith जहाँ पर जो चीज़ बिहेवियर जो है वो अलाउड नहीं है बट फिर भी उन्होंने कर दिया, they will be guilty. बट ऑन दी अदर हैंड कोई एक फेथ से आ रहा है बट इन राइट और रॉन्ग को मानता ही नहीं है, एक्नॉलेज ही नहीं करता, तो उसको गिल्ट नहीं होगा. इट इज़ ऑल अबाउट बिलीफ, और मैं कितना विश्वास रखता हूँ उस चीज़ में. तो दैट इज़ अ डिफरेंस ऑफ कि मैं कितना विश्वास रखता हूँ चीज़ों में, कितना मैं अलाउ करता हूँ कि वो चीज़ मेरे बिहेवियर को, मेरे थॉट को, इमोशंस को, इंटरपर्सनल डोमेन्स को इन्फ्लुएंस करे. इट इज़ अबाउट सेंस ऑफ एजेंसी, कि मैं हूँ और मैं अपनी लाइफ को खुद से क्रिएट कर सकूँ, rather than any other entity or any other ideology shaping my life. बट इंडियंस में इंडियंस में लेकिन ये गिल्ट वाला फैक्टर इसलिए भी शायद हाई है बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स हैं इंडिया में. And why do you say it is high? Because why do I say that it is high? The guilt is high because we have strong belief systems. Like बचपन से ही हमें, because हम लोग देखते हैं अपनी फैमिली में, जैसे I've seen my father जैसे praying to God or whatever, but of course I chose to not believe in God or whatever, but बहुत सारे घरों में ऐसा पढ़ाया जाता है या एजुकेट करा जाता है कि नहीं, भगवान में विश्वास करना चाहिए. भगवान, ये जो भगवान का कॉन्सेप्ट है, गॉड का जो कॉन्सेप्ट है, हमें पढ़ाया गया है थ्रू आवर पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स को कैसे पढ़ाया गया है, तो उनके पेरेंट्स एक्सपीरियंसेस, एंड आगे पीछे चलते जाएंगे तो फिर तो कहाँ तक ही पहुँचेंगे. बट द पॉइंट इज कि ये गिल्ट इसलिए हाई हो जाता है क्योंकि आपने बोला बिलीफ सिस्टम, दैट इट्स अबाउट आवर बिलीफ सिस्टम. ये बिलीफ सिस्टम बनता है on the basis of, and so we as India, as I said, we are emotional, right? तो अगर पापा ने कहा है, मम्मी ने कहा है, तो इसको शायद मानता हूँ या मान लेती हूँ out of respect or whatever, because they are my parents, I love them, so there is a feeling of, love, emotional है. So you believe something on the basis of emotionality, correct? Now जब ये belief form हो गया, और अगर आपने कभी अपनी लाइफ में इस चीज़ को डिसोबे करा, इस बिलीफ के अगेंस्ट गए, कभी मिस्टेक से गए या कुछ भी हुआ, एंड विच हैपन्स हो जाता है, यू डोंट नो इट, आपको नहीं पता होता, यू आर नेवर कैलकुलेटिव ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, और इट इज़ वेरी अनकॉल्ड फॉर. एंड सो व्हेन जब वो डिसोबे हो जाता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, देन यू आर इन गिल्ट, एंड सो द गिल्ट इज हाई. बिकॉज वी हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव्स. यू मेंशन बिलीव, तो इसीलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि इंडिया में सब लोग बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं. एंड आई थिंक द क्वेश्चन हियर इज कि दे डोंट क्वेश्चन द बिलीव्स दैट दे हैव फॉर्म्ड ऑल्सो, कि अगर पापा मम्मी ने कहा है तो ये अरे क्यों कहा है, मैं सोचूं तो सही, बस कहा है. कितने सारे मैंने अपने दोस्त देखे हैं, पापा ने कह दिया तो कह दिया, हाँ ठीक है, यू रिस्पेक्ट योर फादर, ओके, यू लव योर फादर, ओके. It's not affecting your belief, doesn't affect the relationship that you share within your family. The relationship dynamic is a completely different entity in itself. Your belief is your individuality. It's your mind. It's you. It is self. Agree, but Yeah. मुझे लगता है यहाँ पर जनरेशनल डिफरेंसेस बहुत होंगे. हाँ. पहले वाली जो जनरेशन थी वो ज़्यादा ओबीडियंट थी. मैं इसे ओबीडियंस भी नहीं कहूँगा, बट पहले वाले जो हैं उनकी जो आइडेंटिटी है वो अराउंड पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशंस फॉर्म होती थी. बट अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो अब बड़े हो रहे हैं, दे हैव मोर एक्सेस, एज आई हैव टॉक्ड अबाउट. उनको पता है कि उनके पास ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस हैं तो उसके साथ एक विल भी आता है उन ऑप्शंस में से क्या चूज़ करना है. एंड वो जो
चूज करने की एबिलिटी है वो शेप होती है सोसाइटी से, राइट। सो यहाँ पर डिफरेंस आएगा जनरेशन का। शायद जिस जनरेशन से आप आ रहे हैं, यू आर 2025 राइट, 22 जैसा। 20 I'm 20. हाँ, तो ये वाला जो जनरेशन बड़ा हुआ होगा वो इस सेट के साथ बड़ा हुआ होगा। अब जो आ रहे हैं वो डिफरेंट होगा, और उसके बाद जो आएंगे डिफरेंट होगा। It's about the options that you have. एंड एक चीज जो आपने कही, फादर ने बोला तो कर दिया। सो दिस अ कॉन्सेप्ट इन इंडियन साइकोलॉजी कॉल्ड ययति कॉम्प्लेक्स। Okay. तो जैसे एडिपस कॉम्प्लेक्स में था कि फादर, जो बच्चा है, सन है, वो फादर को हेट करेगा या उसे अनकॉन्शियसली मारने की कोशिश करेगा ऑन अनकॉन्शियस लेवल। बट ययति इज कॉल्ड नेगेटिव एडिपस। इसमें क्या होता है कि एज अ सन आई हैव टू ओबे माई फादर, कि जो वो नहीं कर पाए मैं उनको करके दिखाऊंगा, मुझे उनके लिए कुछ करके दिखाना है। सो दिस रन इन इंडियन साइकी। This is a concept of Indian psychology. या let's इट इज say. कॉल्ड ययति कॉम्प्लेक्स। Is it for understanding or is it for promotional basis? That an individual should do. It is a concept. It is and a you can concept take it for from any understanding. perspective. It's Yeah. from an understanding. Yeah. Oh, okay, okay. It's a complex now. Ah. So complex in psychoanalysis. Sure. are It is for fixated. understanding. Yeah. Sure. Okay, interesting. Yeah, that happens a lot. हमारे Indian household में this happens so much. कि पापा ने कहा है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये करना ही पड़ेगा। I did not know there is a particular terminology to it. So Is there an Indian, is there a translation to this word? Yayati. ययति इज अ कैरेक्टर। इट वाज अ कैरेक्टर फ्रॉम महाभारत। Ah, जिन्होंने ऐसा किया था तो उनके नाम पर ययति कॉम्प्लेक्स बना है। ah, interesting. Okay. When we talk about the Eastern and the Western perspective, you as a practitioner, if I can say so, what do you more abide by? Is it the Western? Is it the Eastern? आप दोनों के साथ चलते हो. What is it? इट इज नॉट ईस्ट वर्सेस वेस्ट, इट इज ईस्ट And एंड West. आपको भाषा सीबीटी का शायद रख लो आप, लेकिन आप उसको अपने क्लाइंट के लिए अडेप्ट करो। यहाँ पर मैं इंडियन साइकोलॉजी से ज़्यादा इंडिजिनस साइकोलॉजी को ज़्यादा प्रमोट करूँगा कि जो क्लाइंट है वो कहाँ से आ रहा है। कई बार आप जब प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली इन गवर्नमेंट सेटअप्स, एक डेली वेज वर्कर अगर आएगा आपके पास और उसको डिप्रेशन है, तो क्या आप उसको कह पाओगे कि आपको हर हफ्ते थेरेपी में आना है? यू विल नेवर बी एबल टू, वो शायद आ भी ना पाए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइको सोशल कॉन्टेक्स्ट, कि वो कहाँ से आ रहा है, उसका कल्चर क्या है, उसकी भाषा में इमोशन को वो कैसे एक्सप्रेस करता है, क्या उसके पास कोई वोकैबुलरी भी है अपना इमोशन एक्सपीरियंस या एक्सप्रेस करने की। And I believe so most of the people do not have, maybe in India, मतलब I believe so India में तो है ये, कि people don't have any vocabulary to explain their feelings. दे हैव वो डिस्टॉर्टेड हो सकती है, शायद एक्सप्रेशन लेवल पर ना हो, बट सोच तो हर कोई रहा है कि मैं दुखी हूँ, मैं जेलस हूँ, इनसिक्योर हूँ। See, these words are not there. मैं दुखी हूँ, मैं इनसिक्योर हूँ, हो सकते मैं हैं। जेलस हूँ. These words, हाँ मतलब हो सकते हैं, of course हो सकता है, बट but को वो इमोशंस की तरह ना देखते हुए सिचुएशनल या इंटरपर्सनल फैक्टर्स की जैसे तरह what I देखते हैं। mean by, जैसे मैंने बहुत, अगर if there are people who cannot articulate their feelings, the first battle they have is कि मैं क्या बोलूँ, मुझे पता नहीं. Like अगर आप किसी से आपने तो इतने क्लाइंट्स भी शायद हैंडल करे हैं, तो यू मस्ट हैव सीन दिस, किसे कहते हैं, एक घबराहट भी नहीं कहूँगा मैं, बट दिस स्टैमर, दे लाइक कि अरे वो कहते हैं ना उसको, मुझे ना ये लग रहा था, मुझे ना ये लग रहा था, लाइक मैं कैसे समझाऊँ, मुझे ना ये फीलिंग आ रही थी, अब ये आ वाइब फीलिंग। हाँ वाइब आ रही थी, वो तो हम यूज़ करते हैं, बट अगर मैं किसी ड्राइवर से बात करूँ, किसी शॉपकीपर से बात करूँ, या जो भी है जो एजुकेटेड नहीं है ज़्यादा, वो कहेगा कि अरे वो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था. उनको एग्जैक्टली या तो वो गाली देंगे, ठीक है, क्योंकि गाली में क्या है, इमोशन है, मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशन। हाँ इंटेंसिटी है ना, अब्यूज़ में इंटेंसिटी है एक. काफ़ी लोग कहते हैं गाली, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे कि दिल्ली में तो लोग गाली, जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक अंदर से एक इमोशन नहीं बाहर आता लोगों के. सो द वे इट हैज़ बिन engraved or perceived, the concept of explaining your emotions to people in India, it is an interesting क्योंकि take. सिखाया नहीं गया ना कभी। हाँ, क्योंकि सिखाया नहीं गया है. क्या मैंने वेस्टर्न में सिखाया especially- गया है? वेस्टर्न में सिखाया गया है नहीं ये नहीं पता, बट वेस्ट दे लिव मोर ऑफ ऑटोनमस लाइफ।
इंडिविजुअलिटी, They're- इंडिविजुअलिटी, यहाँ पर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है फैमिली का, कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है. हाँ. एंड यहाँ पर है क्या कि कंपैरिजन या कंपैरेटिव स्पेसेस बहुत हैं, जहाँ पर भी एक डेविएंट इमोशन आएगा, अच्छा रो मत, अच्छा ये मत दो, ऐसे नहीं करना चाहिए. So there are prescriptions. Do you think because they are afraid to face the reality? Who? Like जो कह रहे हैं ना कि रो मत, Hmm. ये मत कर या वो मत कर, जो भी है, they are they afraid of reality? Because see, this is you will feel emotions. That's a reality. Yeah, that's a factual thing also. So when you say that ro mat, they are afraid of it. Like they are afraid of reality. Not exactly afraid, but जब हम कहते हैं कि नहीं रोना है, रो मत, स्ट्रांग बनो, सो कहीं ना कहीं सीखा ही यही है कि रोना गलत बात होती है. ये एक वीकनेस का पॉइंट है. हो सकता है उस पर्सन के लिए वो डिफेंस हो. कई बार खुशी के आंसू भी होते हैं, वी नेवर स्टॉप दैट. सो इट इज नॉट अबाउट क्राइंग, इट इज अबाउट द इमोशन वी आर सप्रेसिंग. ये तो खुशी के आंसू हैं, तब कोई उसे चुप नहीं कराएगा. जब वो एक्चुअली में रो रहा होगा तब सब आएंगे, नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं. सो इमोशन कहीं ना कहीं बिहेवियर में, बॉडी में ट्रांसलेट. कई सारे डिप्रेशन के और एंजाइटी के मरीज सोमैटिक सिम्टम्स के साथ आते हैं. घबराहट हो रही है, पसीना बहुत आता है, चीजें भूल जाते हैं, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लग रही. तो जब आपके पास वो भाषा नहीं है तो कहीं ना कहीं तो मैनिफेस्ट होगा. कहीं ना कहीं manifest. सोमेटाइजेशन या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में यही होता है. When you don't have language. नॉट एग्जैक्टली ये कॉज नहीं है, बट ये चीज़ें हैं, अवेयरनेस नहीं. उनके लिए बॉडीली सिम्टम ही है. ये कॉजेशन लेवल पर, मॉडल लेवल पर, किसी भी लेवल पर अवेयरनेस नहीं. अब लोग आ रहे हैं अवेयरनेस के साथ, अब लोग पढ़ कर आते हैं गूगल से. Yes, देखा आपने? यस, अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स की, हाँ मैंने पढ़ा है, मुझे डिप्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन में ये होता है, या मुझे आप डिप्रेशन बता रहे हैं, एंजाइटी बता रहे हैं, मुझे घबराहट नहीं होती है, ये क्यों लिखा है आपने, आप क्यों बोल रहे हैं. सो देयर इज एन एफर्ट फ्रॉम द क्लाइंट साइड नाउ. पर वो असेसमेंट भी कराने आ रहे हैं तो दे रीड अबाउट इट. ये रौशाक लिखा है तो रौशाक क्या होता है, पढ़ के आना है. तो ये एक चीज़ हो गई है. People are interested. People are, because of any reason, but they are. Yeah. They are investing their I think time it and becomes effort. easier for you as a therapist or counselor that it makes your job a bit easier also. Not necessarily, नहीं. जब वो इंसान अगर फॉर एग्जांपल रौशाक के बारे में पढ़ के आएगा, इफ यू ओनली टॉक अबाउट असेसमेंट, तो इट विल कलर हिज परसेप्शन. हम पहले ही पूछ लेते हैं आपने कभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्योंकि रौशाक में इट इज ऑल अबाउट अनकॉन्शियस, अपना प्रोजेक्ट कर देता है. इट्स अ प्रोजेक्टिव टेस्ट. अगर आपने उसके बारे में पढ़ लिया कि अब तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि रौशाक में एंजाइटी होगा तो ये प्रोफाइल आएगा, डिप्रेशन होगा तो ये प्रोफाइल आएगा, तो कई पेशेंट्स प्राइम होके आते हैं कि इसमें बटरफ्लाई दिखेगा, आप मुझे बटरफ्लाई दिखाएंगे या बैट दिखेगा, तो इट विल प्राइम दी पेशेंट एंड विल कलर योर इंटरप्रिटेशन. सो इट इज़ ऑफ नो यूज देन. तो आप थोड़ा टाइम देते हैं कि नहीं हम 15 दिन बात करेंगे, 20 दिन बात करेंगे, पढ़ना नहीं है आपको इस बारे में. कई बार मेडिको लीगल केसेस आते हैं कि उनको क्लियरेंस चाहिए एंड दे रीड अबाउट रौशाक एंड दे गिव सर्टेन टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज टू गेट द क्लियरेंस कि हाँ मुझे क्लियरेंस मिल जाएगा, मेरा प्रोफाइल क्लियर आएगा. सो ये सारी नुआंसेस हैं. हाँ, अगर एक अवेयरनेस के तौर पर थेरेपी के बारे में पढ़ा जा रहा है देन इट कैन हेल्प इन रैपो फॉर्मेशन. कि हाँ उनको थोड़ा बहुत अवेयरनेस, दे आर साइकोलॉजिकली लिटरेट इनफ कि वो कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं. हम जो बोल रहे हैं, कॉग्निशन, इमोशन, जो हम शब्दावली यूज कर रहे हैं उसे समझ पाए. दैट हेल्प्स, बट इट्स अ सिचुएशनल थिंग. अगर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ के आया है तो वो प्राइम रहेगा कि थेरेपी मैंने तो ऐसा पढ़ा था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, तो वो डिससेटिस्फाइड रहेगा, शायद होमवर्क ना करे, वो आपकी बात ना सुने, क्योंकि उसने कहीं से सुना या पढ़ा है कि थेरेपी तो ऐसे हो, और ऐसे नहीं हो रहा. अब ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब मेरा थेरेपिस्ट बेकार है. So, हर एक मतलब चीज़ के दो पहलू हैं. How do you, as a therapist or as a practitioner, how do you battle it with the client when the client is not able to express themselves
बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉमन दिक्कत है एक, कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, शब्द नहीं है बोलने को, शब्द है तो ऑफ कोर्स एज अ therapist, because you have empathy in you, of course, so you can have an understanding of whatever they are saying. कुछ एक basic understanding आपको है because experience है and empathy है, whatever. But how do you exactly battle that? फर्स्टली असेसमेंट आपको बहुत सारा डेटा देता है. जब भी आप प्रोजेक्टिव टेस्ट स्पेशली कराते हैं तो आपका उस दौरान रैपो बनता है. तो दैट इज़ द पार्ट जहाँ पर आप मेजर खेल सकते हैं. खेलना इज़ रॉन्ग वर्ड, बट आप अपना रैपो फॉर्म करने के लिए बात कर सकते हैं असेसमेंट के थ्रू, और असेसमेंट भी आपको एक डेटा देता है. बट जो आपने कहा कि पेशेंट के पास वोकैबुलरी नहीं है, तो इसमें दो चीज़ें आएंगी. या तो बताना चाह नहीं रहा है या बता पा नहीं रहा है. एक चीज़ है विलिंगनेस की और एक है एबिलिटी की. विलिंगनेस में इट इज़ अबाउट इंसाइट एंड रैपो, Comfort. हाँ. It's about comfort, safe space, comfort. तो वहाँ पर हम रैपो पर काम करते हैं, किसी और तरीके से बात करते हैं. कई बार हम जनरल सेल्फ डिस्क्लोजर देते हैं कि शायद हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ था, हमने ऐसे किया डील. Because of the relatability. Yeah. एंड कई बार वो काफ़ी स्टिग्मेटाइज्ड फील करते हैं, तो हमें उनको नॉर्मलाइज करना होता है कि ठीक है, जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं और लोग भी एक्सपीरियंस करें. Yeah. तो दीज आर सम ऑफ द वेज. एंड अगर एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी चीज़ें आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद प्रॉब्लम इनसाइट में, वो सोचते ही नहीं उन्हें दिक्कत हो. तो हमें इनसाइट पे काम करना होगा. इनसाइट ओरिएंटेड कुछ इंटरवेंशंस रहते हैं, साइको एजुकेशन रहता है, तो आप उसके थ्रू काम कर सकते हैं. These are some things. What do you think कि कितना language vocabulary is important for cognition? भाषा ही जो है वो सोर्स नहीं है, बट लैंग्वेज डिटरमाइंस कॉग्निशन एंड वाइस वर्सा आल्सो. अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन है, तो द वे यू आर टेलिंग इट विल इन्फ्लुएंस हाउ आई विल परसीव इट, एंड द वे आई विल टेल हु एम आई, वो पर कहीं ना कहीं आपको एक इंप्रेशन देगा. सो लैंग्वेज सिर्फ वर्बल कंपोनेंट नहीं है, देयर इज अ पैरा लैंग्वेज. किस तरीके से बात बोली जा रही है, क्यों बोली जा रही है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, Tone है. टोन क्या है. Tone. सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एसोसिएटेड विद लैंग्वेज. इट इज़ नॉट जस्ट वर्बल कंपोनेंट. तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार पेशेंट जो है बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, और आपको डायग्नोसिस या उनके बारे में बहुत हद तक समझ आ जाता है. और कई बार वो कुछ नहीं कहते तो भी आपको समझ आ जाता है. तो सिर्फ बोलना ही थेरेप्यूटिक स्पेसेस में एक डेटा नहीं है, ना बोलना भी. साइलेंस इज ऑल्सो डेटा. अनअवेलेबिलिटी ऑफ वर्बल कॉम्पोनेंट इज ऑल्सो डेटा. कोई पेशेंट बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि ओवरवेल्म्ड है, तो दिस इज ऑल्सो डेटा फॉर यू कि वो ओवरवेल्म्ड है इसलिए नहीं बोल रहा. सो दिस इज हाउ आई बिलीव कि लैंग्वेज सिर्फ एक वर्बल कंपोनेंट नहीं है, बट एक माध्यम है जिस तरीके से इमोशंस, बिहेवियर्स और जो भी चीज़ें हैं इनसाइड है वो ट्रांसलेट होती हैं सामने वाले के लिए. Right. And how does it impact your cognition, your mental processes? The importance of it. मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा The है, self-talk? मैं क्या करूँगा. Self-talk, ना? सेल्फ टॉक ऑल्सो. इसके अलावा अगर मैं किसी दोस्त से भी बात कर रहा हूँ, मेरे घर वाले सपोर्टिव नहीं है, मुझे अलाउ नहीं करते कहीं बाहर आने जाने के लिए, इट इज इम्पैक्टिंग कहीं ना कहीं. आई एम नॉट सेइंग कि आपको पॉजिटिव ही रहना है, नहीं. बट दिस इज हाउ मैं इट समझ रहा हूँ. You're ट्रांसलेट्स. talking about distortion. You're talking about sometimes when the client is going on the path of irrationality sometimes. इरेशनैलिटी भी. और जैसे अब मैं बोलूँ, एक एग्जांपल दूँ कि मैं बीमार हूँ और मुझे बीमारी हुई है, सो दोनों में से कौन सा ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग है. मुझे बीमारी हुई है, No. मैं बीमार हूँ. हाँ, मैं मैं बीमार हूँ. हाँ, और मुझे See, बीमारी मुझे हुई है. बीमारी हुई है is different. दिस इज हाउ लैंग्वेज Okay. कैन इन्फ्लुएंस योर इमोशन. एक सिंपल सा सेंटेंस आपको किस तरीके से कौन सा इमोशन एलिसिट कर सकता है.
मैं बीमार हूँ विल गिव यू अ लॉट ऑफ होपलेसनेस कि अब तो मैं ही बीमार मैं हूँ। हूँ, मतलब इट्स एन एक्सेप्टेंस हो गया ना कि हाँ मैं हूँ बीमार, मतलब मैं हूँ। एक्सेप्टेंस से ज्यादा आपने मैं को बीमार कर मैं दिया। पे कर दिया, हाँ। और मुझे कोई बीमारी हुई है, मुझे हुई है, इट इज समथिंग एक्सटर्नल जो मुझे हो गया है, तो एक डिस्टेंस है। तो किस तरीके से इमोशन को आइडेंटिटी भी हो गया, मैं बीमार हूँ इज इज आपने पूरी लाइक आइडेंटिटी को इल आपने मान लिया। आइडेंटिटी को एक इलनेस मतलब बना दिया। So this is how in health psychology and behavioral medicine also these things play a major। कैंसर पेशेंट्स के साथ या ऑन्कोलॉजी या साइको ऑन्कोलॉजिस्ट रहते हैं, वो इस पर बहुत काम करते हैं। पीपल डोंट एक्चुअली यार बिलीव इट, मतलब मैं अपने दोस्तों में भी देखता हूँ ना, एंड ये क्वेश्चन बहुत आता है कि या ये क्वेश्चन नहीं कहूँगा, ये assumption बहुत आती है, थेरेपी क्या जाएगा, थेरेपी क्यों जाना है, बात कर लेते हैं 2 साल में। सो ओके, देर इज एन एलिमेंट ऑफ इमोशनल सपोर्ट ऑफ कोर्स, एंड दैट इज इंटीग्रल, दैट इज इम्पॉर्टेंट, उसको तो कोई मना कर भी नहीं रहा है। बट आई थिंक द थेरेपी ऑल्सो could be wrong, but therapy puts emphasis on the relationship you have with yourself, and maybe sometimes that can only a therapist can do it for you, or not. The therapist doesn't do it for you, the therapist guides you through the journey for you to do it yourself, probably. Is that a correct way to put it? थेरेपिस्ट या थेरेपी आपको और ज़्यादा अवेयर कराएगी आपके अंडरस्टैंडिंग के साथ, आप किस तरीके चीज़ें देखते हैं, किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो अवेयरनेस कंपोनेंट डेफिनेटली है, बट क्या पता आपके पास ये अवेयरनेस पहले से हो, बट आप एग्जीक्यूट ना कर पा रहे हो, आप उस डेटा का यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो थेरेपिस्ट विल हेल्प यू टू फॉर्मुलेट अ प्लान ऑल्सो, कि आपके पास ये जो स्किल्स हैं, ये एसेट्स हैं, उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है। आपने जैसे कहा कि कई बार अवेयरनेस नहीं होती है, दैट इज पॉइंट कि आपको अवेयर कराया जाएगा, बट कई बार अवेयरनेस होने के बाद भी नहीं कर पाते, तो ये एक डिस्टिंक्शन है। रेगुलेशन में काफ़ी हेल्प करता है। हाँ, रेगुलेशन एंड एग्जीक्यूशन। और दोस्तों के साथ जो सपोर्ट है, सोशल सपोर्ट इज समथिंग जो थेरेप्यूटिक स्पेसेस में हम एनकरेज करते हैं। हाँ, हम कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि कह देते हैं कि दोस्तों ने कहा था तो हमने ये कर लिया, और हो सकता है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो आपकी थेरेपी जर्नी। या किसी रिश्तेदार ने कहा था तो हमने ये कर लिया, दवाई नहीं खाई, ये तो सोने वाली दवाई होती है। तब आपको साइको एजुकेशन करना होगा कि क्यों थेरेपिस्ट ज़रूरी है और थेरेपिस्ट की एडवाइस ज़रूरी है। आप अपनी बातें शेयर करिए, लेकिन आप इलाज यहाँ से करा रहे हैं। आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं और जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। Right. So, कई बार ये एक प्रॉब्लम भी आता है, Problem भी आता है। सो यू हैव टू डिमार्केट क्लियरली। Right. Okay, I guess this is going to be the end of the episode, I think, and I think, see, the thing is, काफी सारी चीजें ना मुझे खुद पता नहीं थी. A lot of things I did not know. Some things that you told me, and of course, because you're a senior and someone who is also a practitioner, it also motivates me कि आप इतनी early age में at the age of 25 you have experienced it, and your insight on language cognition, it is interesting because मैंने करी है बात कुछ psychologists से, कुछ psychiatrists से, they have not maybe discussed it with me, but they have also not thought about this because it is important. I have seen this problem around me, and that's a and I feel like कभी कि यार इसको tackle कैसे कर सकते हो आप, you know, how do you exactly tap into this problem of when people don't have the correct language for themselves, and it's a battle that they are having. हो सकता है उनके पास भाषा हो, क्योंकि एज अ थेरेपिस्ट और एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट्स वी आर ओनली ट्रेन्ड इन इंग्लिश, Sure. we are never trained in our local languages. And that's something that you also want to work on and is working on, I think so. Like As in that you told me कि आपने जब काम करा था with the rural areas में जब आपने करा था, so you saw this, उनके पास तो है नहीं, तो आपको वहाँ से बहुत हिंदी आपने जो ग्राउंड लेवल भाषा आपने सीखी जो, एंड आपने अपनी प्रैक्टिस में उसको जिस तरीके से इंटीग्रेट करा, दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज रूरल एरिया, इंडिया इज रूरल सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा हद तक, राइट? अब हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, रूरल भी नहीं, हिंदी जो है हम आमतौर पर अपने घर में यूज करते घर में भी यूज़, इट्स नॉट अबाउट हिंदी, कोई भी नहीं, अब भाषा हो, अक्सर पंजाबी, उर्दू, वो भी अब सर थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन मतलब वो भी एक्चुअली में ये जितना मैंने देखा है, बिकॉज
कि कैसे इंग्लिश इज समथिंग विच इज बिकमिंग अ नेचुरल Normalized. थिंग, विच इज इट्स अ नेचुरल थिंग फॉर सो मेनी. ऐसा नहीं है कि एक भाषा की बात हो रही है, इंग्लिश में भी शब्द हैं, लेकिन अगर हम जो इंटेंसिटी. जिस मदर टंग के साथ हम बात हाँ. करते हैं, अगर उसमें हम उस तरीके से हम कॉग्निशन, लैंग्वेज, सफरिंग, थेरेपी हम उसको ढाल लें तो इट विल बी मोर रिलेटेबल. मोर रिलेटेबल. ये सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का डिबेट नहीं है, ये इन जनरल लोकल रियलिटीज, वर्नाकुलर रियलिटीज को एक्नॉलेज करने का एक तरीका है. Psychology students are obsessed with Freud, but they will never really have the courage to challenge that. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रॉइड पढ़ना गलत है, बट सिर्फ फ्रॉइड पढ़ना शायद आपको एक अर्ली करियर थेरेपी या अर्ली करियर प्रोफेशन में हेल्प ना करे. एज अ स्टूडेंट यू शुड बी ओपन टू ईस्टर्न पर्सपेक्टिव, इंडिजिनस पर्सपेक्टिव, और अगर उतना भी नहीं तो एटलीस्ट जो अपनी भाषा है उसमें खुद को टटोलो कि आप क्या शब्द यूज़ करते हो जब आप दुखी होते हो. विल यू यूज़ द टर्म डिप्रेस्ड, कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ या मैं बहुत परेशान हूँ. इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी एनी वर्ड, इट कैन बी एनी एक्शन. और मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजी स्टूडेंट को सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सबको भी बेसिक लेवल को पढ़ना चाहिए, सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को, क्योंकि everything enters in the therapy room. We are dealing with a human. Yeah. You are dealing with a society. You are dealing with the family. So हर एक चीज एक सोशल डायरेक्शन देता है, इम्पैक्ट डालता है. तो ये मेरा मानना है. Thank you so much, sir. Well, I hope you all liked the episode. It's interesting that in this episode we talked about sufferings, we talked about how therapy is in India, what is the root cause of it. And I think a lot of people think that having friends and ki dost se baat kar lena would solve a lot of problems for them. I believe so that talking to friends, talking to your family definitely would help. It is a support that it's a support that we need as humans. It's our emotional need. So definitely support is there, but sometimes I think what happens is that a lot of people, even if they have the family support and the social support, they still do not seek help from them, or maybe they still don't talk about emotions and about their life, about themselves. There are many less people who actually, I think, talk about how their day was, or what did they feel today, did they feel angry today, did they feel sad today, did they feel happy today. So I think a therapist can come in here and help the individual to also uh, create a safe space for the individual, to talk to the individual and therapize the patient. And so I think therapy is essential. People who are here, people who have problems and they don't have people to talk to, or even if they have people to talk to, if they don't think that's a safe space for them, then they can definitely, or I think that they should take therapy. Second thing is that the concept that we have discussed here about language, it is interesting to see that how people expresses their emotions in their own language, in their own vocabulary. And sometimes I used to think that maybe they are using the wrong vocabulary or the wrong words to describe their feelings. But I think that there is no right and wrong. What I've learned from this podcast is that there is no right or wrong way to describe your feeling. It is just how you feel. You don't have to have a, like any specific word for your feelings. You can use any word for your feelings because that's how you feel. So I think that should be respected. I'd like to thank my team for making this episode happen. Ashish, who handles the camera, Apoor, who handles the camera, and my other teammate Riddhi, who helped me also on the discussion of these concepts of Indian psychology, and my colleague and my teammate Lavya, who helped me also to talk about all of this Indian psychology, and we had a full discussion before the podcast. And yeah, thank you, my team, and
And at last, I'd like to say thank you, Mr. Krishna Mehra, to come on the show and to talk about all of this. I hope it was a great conversation as for you as well. If you guys liked the episode, of course, drop a comment down. Comment on whatever you think about the concepts that we have talked about, and if there is any question that we have left, you can also add that. Thank you so much for your time, all of you who have watched this episode. Thanks so much. See you in the next. Thank you.